Starts today's session with a question. Mutual fund people think is the most simplest way to invest your money, right? But for example, if a relative or a friend comes to your home and asks you, right, that which mutual fund I should invest in, how would you reply? Means it's a very generic question. Anyone can, you all are from science background, and yes, you can reply in the chat box. Yes. So, how would you reply to that person? Risk tolerance, long term, short term. Uh, okay, please. I want you to think more, guys. Uh, how would you reply to that person? Where to start to have better returns? And how will you shortlist a good mutual fund? Again, it's very interesting and it's very important as well, because we think mutual funds are very easy to invest in. But if I tell you, let me start the session with a small research part only. Just give me a moment. So, guys, this is these two websites are good for mutual funds. One is advisorkhoj.com. I will be copy pasting the link. And next one is rupeewest.com. Rupeewest is the latest site, it's very new site. Advisor Khoj website is since 2014-13. It's from my time. So if I tell you, so see, these are the number of mutual funds. Oh my god, just see. It just, have you ever gone to a Subway or McDonald's, right? They ask you, what would you like to have? So you'll say, I'll have a bread. Okay, which type of bread? Okay, this type of bread. Which type of sauce? Okay, there are 10 different types of sauces. Then what fillings you would like? There are 10 different types of fillings. So there's so many options, so many options that it can really confuse anybody where to start, which mutual fund is good, which mutual fund. This is type of mutual fund. Further, there are further types. Further, there are or more parameters. If I click in any one of these, today we are going to study the things not just theoretically. We will be at the end, towards the end of the this session, how to shortlist a good mutual fund. And within a mutual fund there are so many things, how to compare, which things to compare. So it's quite a big task if I tell you guys. Means how to invest the money, where to invest the money, even if you are starting investing in mutual funds, from where you should be starting from. All right. So, all right, let me see the replies and then begin the session. So today, guys, I don't have a different mobile phone logged in to read your messages, so I will be going through the stuff and then we'll have the doubts. Look at the AUM. If just seeing AUM, Ashutosh will that be fine. Diversified is better, but mutual funds are all almost, and every mutual fund is already diversified, right? SIP. So what about STP and SWP, right? There are multiple plans as well in mutual fund, Arushi. Long term plans. Uh, Once somebody had written, short term and long run. See, guys, mutual fund should be for long run only. I don't think mutual fund will give you short term benefits. That short term benefits are not there in mutual fund. Utpal index funds are good, but you should be keeping in mind how much returns you can expect from there. All right. Large cap, Ritik, nice name, Ritik. Large cap funds are good, but returns would be less, right? Sector specific. See, sector specific could be fine, but what if sector is if that specific sector is having a bad news, guys? If government changes the taxation of that sector, so your mutual fund will also go down, right? So diversification will get a hit over here, right? So these were the few replies. Okay, thematic mutual funds are doing good. All right, due to volatile nature of markets. So, guys, the thing is that we in today's class, Ankit, ETF. Let's see how ETFs will give you the returns. So, we in today's class, guys, we are going to start this session. Uh, First, we need to understand few concepts of mutual fund so that when we'll do the practicals, it becomes easy for you to understand, right? So today's class would be on mutual funds. First, we'll touch some very important concepts, and then I will tell you how to use the websites and how to shortlist your mutual funds for yourself itself. Another thing is that in our college and school and in CFA curriculum as well, definitions and all those things are cleared, but practical aspect is not clear, right? So today, what we are going to discuss: what is a mutual fund, how it works, AMC,
net asset value, what are units, AUM, exit load, all the expenses and types of mutual funds, and we will be relating and applying this information into the practicals. Okay, this is about myself, guys. I am an engineer. I do have masters in finance and economics, 9+ years of experience into training, finance and investment banking only. Right now, let's start with a mutual fund. What exactly it is, right? As a name itself suggests, you guys. So guys, if you have any doubts in between, you just keep your doubt with yourself. I will stop the screen share and then we'll discuss the doubts, because I don't have a different mobile set to log in today's. So I'm unable to read the chat, so I don't want to stop the screen share and then again come back and then again do the screen share. That will be bit difficult for you and for me as well to understand. Mutual funds, as the name itself suggests, it is something, when people are mutually coming and they are gathering or pooling some money, right? That is mutual. What exactly happens over here, right? People come, people, for example, let's take you all as citizen of India. You all will come together mutually, collect the money, right? And you'll give the money to a person, to a fund manager. Means I'm your teacher. Let's take me as a fund manager. I'm a fund manager. I will collect money from you, thinking that you may not have good finance knowledge, you don't have the practical knowledge, or you may not have the time to invest your money in stocks. Means आपको knowledge नहीं है, you have not done the equity research yet, you have not done the valuation yet, right? You don't have the knowledge to invest directly in the equity, because that can give you big and huge losses. So instead directly investing in the stock market, you give your money to me, and I am investing your money in the stock market only, right? Just for an example, this is a mutual fund, and whatever returns I will be getting, I will be distributing that return to you. This is how a mutual fund works. I will be coming this again in a moment. Now, mutual fund is a financial, it's a vehicle which pools the money, means which collects the money from multiple investors. So for example, I am a mutual fund. I will collect money from all of you, and that money can start from basic 100 rupee as well. Just from 100 rupee you can start investing in mutual fund. Now, before I proceed further, one advice to you guys. uh, since you are very young right now, I would really expect and suggest you that start investing in gold coins and mutual funds, because right now I don't have knowledge of equity, and multiple other instruments. So start from here, start even from 100 rupee, put this habit, right? And whatever we are going to learn in this class, it's a disclaimer, it's just for the educational purposes, it's not a investment advice, right? So mutual fund collects the money and they invest in diversified portfolio. Diversified means मैं आप सबसे पैसे लूंगा, I will take money from all of you, then I will invest in stock market, bonds, gold, whatever, safe instrument I feel, I will invest there. It's not a hedge fund. Hedge fund take higher risk, really really bad risk, but mutual fund takes very less risk. So they will be investing in nearly all the financial instruments, right? And whatever money I will be earning out of that, I will be making out of that, I will distribute it again back to you. And what's my profit in this? I will be taking some expense ratio, some proportionate money from myself. That will be my salary, and people who are working with me, their salary. So we are paid from your money only, right? You are giving your money to us. I am investing your money, right? And once the money is invested, I will make some profits from that money, right? And I will take some share of profit for myself and my team and distribute rest to you. So this is how a mutual fund works. Now we need to understand these terms. I don't want you to cram. I just want you to just understand these terms. There is a term called sponsor, trustee, AMC, custodian, and RTS. Now let's see how it works. Sponsor का मतलब है, sponsor means it's just like a promoter. जैसे who is the promoter of Reliance? He is Mr. Ambani. Who was a promoter of Adani, the company, the Adani port and all those companies, is Mr. Adani. So promoter is the owner of the company, right? So sponsor is the owner of the mutual fund. It's just the owner. It could be HDFC, it could be SBI. So sponsor is just like a promoter of equity. So sponsor किसको बोलते हैं? It's just a term, technical term given to the owner of the mutual fund. So a sponsor can have multiple mutual funds working under it.
Means there could be 50, 60, 100, 200 mutual funds as well. I hope you're getting the point. So sponsor is just like the promoter of the mutual fund. So sponsor क्या करता है, they hire some people, group of people, 5 6 people. Those people are called as trustees. As the name itself suggests you, trustee means these are the people who would be managing the entire mutual fund, whether all the things are going good, is there any fraud going on. Means they have to keep, they are like watchdogs ये नज़र रखने के लिए. They are not the executionary body. Execute ये भी नहीं, it's not, both these bodies are not executionary. ये कोई भी execution अभी कुछ नहीं कर रहे हैं. They are just keeping an eye on mutual fund. So trustee will keep an eye on mutual fund, whether people are having good integrity, they are not doing any frauds, funds are transferred in a good manner, in ethical manner. So this is group of people who are just keeping an eye. Then comes these group of people, they will hire three different people: AMC, custodians and registrars. Now, अब सबसे पहले ये जो ट्रस्टी थे, दीज ट्रस्टीज, इनको तो फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी. फॉर एग्जांपल, दे डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट मनी, कहाँ पे पैसे लगाएं, कहाँ से पैसे लें. सो व्हाट दे विल डू, दे विल हायर एन फंड, AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. Asset management company में they will make a company within a company who will do, who will take the money from you, who will do the investment part, who will do the research part. तो ये क्या करते हैं, this asset management company is headed by a fund manager. एक फंड मैनेजर होगा जो इन सब, इस पूरी कंपनी को हेड करेगा. मीन्स दिस कंपनी विल बी हैविंग some research team, marketing teams, call centers, data entry teams. So multiple teams would be there. All the teams would be headed by a fund manager, right? So what they will do, they will do the research and give the research to the fund manager, and fund manager will take the final decision कि आप सबका जो पैसा है वो कहाँ लगाना है, where to invest that money, which stock, Reliance stocks or Adani stock, when to buy, when to exit, or we should invest in bonds, when to buy bonds, when to exit. तो when है ना वो, when the time, कि कब लेना है and क्या लेना है, what to buy and when to buy is decided by this, right? Then come the custodian. See, it's again very interesting, guys. Mutual fund works throughout the country. Lakhs and lakhs of people invest their money in mutual funds, right? अब यहाँ पे होता क्या है, जो फंड मैनेजर है एंड दिस AMC, दे जस्ट बाय एंड सेल थिंग्स, दैट्स इट. दे जस्ट डिसाइड व्हेन टू बाय, व्हाट टू बाय, बट दे डोंट हैव दिस मच टाइम. इतना टाइम नहीं है उनके पास कि जो चीज़ हमने खरीदी, वट एवर वी हैड परचेज्ड, हैव दैट थिंग केम इन आवर अकाउंट और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड परचेज्ड 1 lakh shares of Reliance, just for an example. It's a huge number, guys, huge volume, right? So this fund, and it's not just 1 lakh share of Reliance. For example, today mutual fund had purchased 1 lakh shares of Reliance, 1 lakh shares of Adani, 1 lakh shares of South India Bank. Similarly, so many transactions took place in a day, for example. Now this fund manager will go crazy if he keeps an eye, पैसा आया गया, shares मेरे account में आए कि नहीं आए, so whether the delivery have done or not, has done or not, whether if I had sold something, whether the entire volume of the shares, क्या वो पूरा का पूरा बिका है lot या नहीं बिका है. So for that, there is a different department, that is custodians. So custodian का जो काम रहता है, the main objective of custodian is, whatever this mutual fund is doing, this AMC is doing, fund manager is doing, he has to verify that whether the all the purchases in the day, जितना भी खरीदा गया है shares या कोई भी financial instrument in that day, whether that transaction is complete or not. Means, is it 100% complete, or still some shares are pending to get credited or in your account or delivered in your account, or अगर हमने कोई शेयर्स बेचे हैं तो क्या सारे के सारे शेयर बिक गए हैं या नहीं बिके हैं. सो ही हैव टू कीप दिस आई, राइट. नाउ many companies, they give dividends as well. So for example, Reliance ने dividend announce किया, so whether that dividend is credited in the account of this AMC, वो कौन चेक करेगा? This is custodians. So this will check whether the transaction is complete or not, right? Now coming to the third party, registrars. Now registrar at itself suggests you these are registering something, they must be registering something. Now guys, ये तो था म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से.
Now you people, you are so many students in the class. Now what if you redeemed your money, आपने पैसा निकालने की कोशिश की म्यूचुअल फंड से, बट इट डिडंट हैपन. What if सबको all the students got dividends. We sometimes mutual fund distribute some income as well. तो सबको डिविडेंड मिला, एक्सेप्ट वन स्टूडेंट. वेयर दैट पर्सन वुड गो? इसके पास तो नहीं जा सकता. ही विल से आई डोंट नो एनीथिंग. ट्रस्टी को कुछ नहीं पता. एएमसी इज ऑलरेडी बिजी. कस्टोडियन हैंडल समथिंग एल्स. सो रजिस्ट्रार्स, they register whatever transactions are done by you people, by the pool of people. कुछ लोग आपसे, मैनी ऑफ यू वुड बी रिडीमिंग देयर मनी, मैनी ऑफ यू वुड बी सबमिटिंग देयर मनी. कुछ लोगों ने SIP किया होगा, कुछ ने SWP किया होगा, कुछ ने ट्रांसफ़र प्लान्स लिए होंगे, STP. सो इफ़ ये सारा का सारा अगर AMC संभालेगा तो ही विल गो क्रेजी. कस्टोडियन संभालेगा, ही विल अगेन गो क्रेजी, बिकॉज ट्रांजेक्शन आर सो ह्यूज. तो ये जो काम होता है पब्लिक डीलिंग का, मीन्स वेदर यू पीपल गॉट योर मनी, आपने जो पैसा मुझे दिया क्या वो मुझे पहुंचा, मीन्स म्यूचुअल फंड को पहुंचा, क्या म्यूचुअल फंड ने जो पैसा आपको वापस किया क्या वो आपको पहुंचा. यू ट्राई टू रिडीम द मनी, आपने पैसा रिडीम करने की कोशिश की, क्या वो आपको पैसा मिल गया, या आपने पैसा मुझे देने की कोशिश की, क्या पैसा मेरे पास आया, या कोई भी आपकी ग्रेवियांस है, तो यू विल बी कनेक्टिंग विद RTS, registrars. Now you don't need to connect with AMs, you don't need to connect with custodians. This is your stake. This is the stakeholder who will be taking care of your grievances. Now you know this is the entire mutual fund chain, how it works. All right, guys. I hope this is clear. If you want me to repeat anything, I can. Any doubts in this? No doubts. I hope this is clear. Maybe this is very complex stuff. I really gave you very easiest explanation in this, right? Otherwise many students get confused in this. All right, it's clear. All right, all right. Now coming to the next thing. So this was a mutual fund. Now how mutual fund works, I had already told you this thing. So these are the investors. These investors stay throughout the country. All the citizens could invest in a mutual fund. They all will start investing in mutual fund maybe from 100 rupee. Some people can invest 1 lakh rupee a month. Some can more than 1 lakh, crores as well, right? So huge amount of money is collected. Huge amount of money is collected, right? That money will go to a fund manager. This fund manager will think, decide, read the research, and then invest the money in any financial security. It could be bonds, it could be stocks, it could be some other financial securities as well, that we are going to discuss in the practical part. He will make some money out of this, some profits. Those profits will be distributed back to the investors. This is how a cycle of mutual fund works. इसका क्या फ़ायदा म्यूचुअल फंड मैनेजर का? ही विल टेक सम प्रॉफिट शेयर फ्रॉम हिमसेल्फ एंड फ्रॉम फॉर हिज टीम एज वेल. तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट अपने लिए रख लेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द इन्वेस्टर्स एज वेल. तो इसमें आपका क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स. आपको अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सम वन एल्स इज़ इन्वेस्टिंग ऑन योर बिहाफ. जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसको आपसे ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है, दिस गाय इज़ हैविंग मोर देन ही इज़ इन 50s और 60s, अपने 50-60 साल के एज में होते हैं, एंड ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय. ही इज़ डूइंग इन्वेस्टमेंट्स ऑन योर बिहाफ. ऑलराइट, सो आपका टाइम बच रहा है. यू डोंट हैव टू डू द रिसर्च. आप गलती नहीं कर सकते इसमें, बिकॉज अदरवाइज इक्विटी रिसर्च में यू कैन मेक अ मिस्टेक, राइट? और जो फाइनेंस के स्टूडेंट नहीं है, दे कैन मेक ह्यूज मिस्टेक्स. बट जस्ट इमेजिन अ स्टूडेंट फ्रॉम साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड. फॉर देम इन्वेस्टमेंट इज़ अ बिग इशू गाइज. दे पीपल डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट. तो उनके लिए तो अच्छा है, राइट? हाँ, बदले में नुकसान क्या है आपका? कुछ कमीशन ये लोग ले लेंगे. फंड मैनेजर विल टेक अ प्रॉफिट शेयर. मे बी आपको डिविडेंड्स ना मिले, बिकॉज नॉट ऑल द म्यूचुअल फंड्स दे गिव यू डिविडेंड्स, राइट? तो आपको प्रॉफिट्स थोड़ा सा कम मिलेगा, आपको डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे. बेनिफिट है, यू डोंट हैव टू यूज़ योर ब्रेन. चैन की नींद आएगी रात को, यू कैन स्लीप बेटर, एंड यू डोंट हैव टू टेक द स्ट्रेस ऑफ इक्विटी. आप खुद कुछ कर नहीं रहे हो. सो दिस इज़ हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क. आई होप दिस इज क्लियर. What is an AMC, guys? This is very important to understand. Asset management company. How it works? See, people, they give their money to a company. इस कंपनी का काम ही होता है, जैसे द नेम इटसेल्फ सजेस्ट यू, एसेट मैनेजमेंट. दिस कंपनी इज मैनेजिंग द एसेट्स. हुज एसेट्स? योर एसेट. आप सब अपना पैसा इकट्ठा करके यू विल गिव इट टू मी,
and I will be the person who will be investing that money, right? So these companies, they invest the assets in stocks, bonds, real estate as well, REITs as well sometimes, right? REITs, right? And other securities that we are going to discuss in the coming slides. So HDFC, ICICI, you might have seen there are so many AMCs as such. अब इस AMC का फ़ायदा क्या रहता है? दे चार्ज एक्सपेंस रेशो, मैनेजमेंट फीस, and they have huge collection of money, guys. Sometimes the collection can touch 30 40 crores as well. Now 30 40,000 crores as well, right? Now guys, we need to understand these terms. Now coming back to the practical thing. See, सबसे पहले जो चीज़ रहती है, so these are types of mutual funds. These types we are going to discuss just in a moment. अब यहाँ पे there is a term called AUM, TER, returns, right? Now let's start from AUM, guys. Now I want you, we are combining both the mutual fund research and the theoretical part together. I want you to focus over here. See guys, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट कब हुआ है, when the mutual fund had started. Now advice number one before investing in any mutual fund would be try to invest in a mutual fund who is at least 5 or 10 years old. जो म्यूचुअल फंड अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, एक साल पहले हो, जब म्यूचुअल फंड विच हैव जस्ट स्टार्टेड 1 or 2 years बैक, ट्राई टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन सच म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो वाई टू टेक रिस्क लेना है तो इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करो. म्यूचुअल फंड इज देयर फॉर द सेफर इन्वेस्टमेंट्स. सो नेवर एवर इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड जो 5 साल से लेटेस्ट हो, इज जस्ट अ न्यू म्यूचुअल फंड. नेवर एवर. मैनी ये केसेस वुड बी देयर. बहुत टाइम ऐसा होगा, आप कभी अपने बैंक जाओगे एंड योर बैंक मैनेजर और योर डिस्ट्रीब्यूटर विल ट्राई टू सेल यू अ म्यूचुअल फंड हु इज जस्ट स्टार्टेड. इट इज़ कॉल्ड एज न्यू म्यूचुअल फंड ऑफरिंग, न्यू फंड ऑफरिंग, NFO, राइट? वो बोलेंगे सर एक नया फंड शुरू हुआ है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है. हाउ डू यू नो? Because at least for data as well, for research as well, there should be data of at least 5 10 years, right? So it is a advice that you should see the launch date of mutual fund, कि म्यूचुअल फंड कम से कम 5 साल पुराना हो. जितना पुराना उतना बेटर, बट एटलीस्ट शुड बी मोर देन 5 years, right? Then comes AUM, asset under management. नेम इट सेल्फ सजेस्टिव, इंग्लिश में मतलब हुआ लिटरल मीनिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मीन्स एक कंपनी कितने एसेट्स अपने पास रखे हुए हैं. नाउ हाउ इट वुड वर्क गाइस, लेट्स सी. नाउ द थिंग दैट वुड वर्क ओवर हियर, आप सब ने पैसा कलेक्ट किया, यू ऑल कलेक्टेड मनी. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दैट 100 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास. लेट्स फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, राइट? Now, out of those 100 students, you all gave me 10 rupee. So 10 into 100 would be 1000. तो जो पैसा आप सबने कलेक्ट करके मुझे दिया, द मनी यू गेव मी, दैट इज AUM. अब वो 1000 रुपया मेरे पास है, दैट 1000 rupees विद मी, राइट? सो दिस इज माई एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM. सो दीज आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स जो कंपनी के पास है. नाउ व्हाट आई विल डू विद दैट 1000 rupee विच यू गेव मी. So all the students gave me 10 rupee, right? Now guys, I want you to understand these two concepts are a bit tricky, and NAV and AUM. आप सबने मुझे पैसा दिया and that money is with me, right? So that 1000 rupees AUM. So is that 1000 rupee dynamic or it's static? क्या वो पैसा change होता रहेगा? Means value of that money, will that change or not? Think and reply guys. You can reply. I'm trying to log in from one more. Okay. Now the thing that would come over here, guys. All of you gave me 1000 rupee. I had invested that 1000 rupee in stocks, for example. अब फॉर एग्जाम्पल आजकल मार्केट नीचे गिर रही है, द मार्केट्स आर फॉलिंग नाउ. तो वो 1000 रुपी बन गया 800, वैल्यू नीचे गिर गई. तो अब मेरा AUM इज 800. नाउ इन द केस मार्केट्स आर डूइंग वेरी गुड, तो वो AUM ऊपर जाएगा, राइट? फ्रॉम 1000 इट मे बिकम 1500, तो AUM बढ़ गया. सो AUM इज अ डायनेमिक नंबर गाइज, इट विल कीप चेंजिंग, राइट? सो आपने जो मुझे पैसा दिया, दैट मनी आई एम इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड AUM.
एंड यस इट इज़ डायनामिक. ऊपर वेल अगर मार्केट्स अच्छी परफॉर्म कर रही है तो माई AUM विल इंक्रीज. इफ मार्केट्स आर गोइंग डाउन माई AUM विल डिक्रीज. नाउ समवन हैड रिप्लाइड कि सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से पहले हमें AUM देखना चाहिए. डैट वॉज अ गुड अप्रोच, राइट. यस, हमें अभी तक दो चीज़ें देखनी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले. फर्स्ट द डेट, इट शुड बी ओल्ड. जितना पुराना उतना अच्छा. बहुत पुराना भी मत ढूंढ लेना 1990s का, बट स्टिल इट शुड बी एज ओल्ड इट्स बेटर. नेक्स्ट, एज हाई AUM इज इट इज़ बेटर. इसका मतलब है ज़्यादा AUM का मतलब इट मीन्स पीपल आर हैविंग ट्रस्ट ऑन यू, ट्रस्ट ऑन द म्यूचुअल फंड कि यार इसके पास देते हैं पैसा अपना, ये इंसान अच्छा है. आप अपना पैसा वैसे तो किसी के पास दे नहीं सकते. आप भरोसा करोगे तभी यू कैन गिव द मनी, राइट. आप यू कांट गिव ए मनी जस्ट रैंडम टू अ रैंडम पर्सन, दैट टू योर एवरी मंथ सिप, राइट. once in a while is fine, but if you're giving your monthly income to someone, so you should have trust. So higher AUM means higher trust. Higher AUM means good mutual fund. Higher AUM could mean they are doing good in terms of collecting the money and investing the money. And higher AUM could also mean that they are increasing the money which you had given to them, right. So this is again a good mutual fund, you could say. Now यहाँ पे कुछ और टर्म्स आ रहे हैं, रेगुलर प्लान, ग्रोथ प्लान. वी नीड टू सी दीज टर्म्स एज वेल, बिकॉज एवरीथिंग over here, whatever is mentioned over here, will play an important role before you invest your money. I hope AUM concept is clear to everybody. Any doubts, guys? Okay. uh, there is what should be threshold. Arushi, as such threshold नहीं होगा इसमें. Why threshold will not be there? Because it's a comparison thing. मीन्स आपका बाकी के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए. इट शुड बी हायर देन, इफ़ आई कंपेयर इट विद अदर्स इट शुड बी हायर, राइट. इट्स नॉट अ बेंच मार्क थिंग. ऑलराइट. ओके, आई विल रिपीट AUM once more, Aditya. Alright guys, let's proceed further then. So the website name is Advisor Khoj. I am writing in the chat box, guys. This is also a good website. Rupee West is also a good website. Both the websites are quite same. कुछ फ़र्क है नहीं, बस थोड़ा सा उसका user interface would be different. Rest all the things are very same throughout this website. So let me repeat myself again for the AUM. Aditya was saying to repeat it. See guys, how it works. आदित्य, आपने मुझे पैसा दिया, यू गेव मी 1000 रुपी फॉर एग्जाम्पल, राइट. और वो पैसा आपने कहा प्रणय सर आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्टेड समवेयर. सो आई इन्वेस्टेड द मनी इन स्टॉक्स. तो जो 1000 रुपये आपने मुझे दिया था, डेट इज़ AUM, द कलेक्टेड मनी अ म्यूचुअल फंड इज़ हैविंग. तो हज़ार रुपये जब पूरी क्लास ने मुझे दिया, व्हेन ऑल द क्लास मेंबर्स दे गेव मी 1000 रुपी, एवरीबडी गेव मी 1000 रुपी. सो दैट कलेक्टेड मनी, दैट सम ऑफ मनी will become AUM for me, right. Now what I can do for that AUM, I can invest it the way I want. Why the way I want? The thing is that it's my discretion power. So guys, now you can ask the doubts as well along with this, because I had logged in from a different mobile phone as well. So let's proceed further. Now I won't be stopping the screen share now. Okay, now AUM is clear, guys. I hope this is clear, everybody. Higher AUM means is good. कितना होना चाहिए? देखो, इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ. Many of you are asking this question. सर ये कितना होना चाहिए? See guys, इसमें कितना is not a barrier. इसमें है कि amongst all ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं फॉर एग्जांपल, इन सब में हाईएस्ट किसका है. हम यहाँ पे ये देखने नहीं बैठे हैं इनमें से बेस्ट कौन है. हम यहाँ पे ये देखने बैठे हैं इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, राइट. इसमें से एक बेस्ट नहीं होगा कभी भी. कुछ एक में अच्छा होगा, कुछ दूसरे में अच्छा होगा. दीज आर शेड्स ऑफ ग्रे, गाइज, राइट. एक क्वालिटी सब में नहीं मिलती. जैसे फॉर एग्जांपल द सेम थिंग वुड कम ओवर हेयर. हमें ये देखना है कि देखो, अब लेट्स सी, यहाँ पे 49,000 इज़ द म्यूचुअल फंड, राइट. यहाँ पे 93,000. सो इफ़ आई कंपेयर दिस वन इज स्ट्रेट ऑफ विनर. तो हमें देखना है व्हेन वी कंपेयर थिंग्स, सबसे बेस्ट कौन निकल के आया. सो वी हैव टू सी विच वन इज़ बेस्ट. सो देर इज़ नॉट अ बेंच मार्क ओवर हेयर. हाइएस्ट इज़ बेटर, राइट. और हमें ये देखना है कि बाकी म्यूचुअल फंड में विच इज़ वर्स एंड विच इज़ बेस्ट एंड विच इज़ बेटर,
अच्छा बुरा, देर इज़ नो स्ट्रेट कट आंसर्स, बट हमें कुछ रिजेक्ट करना तो आना ही चाहिए। जिसका बहुत ही कम है, स्ट्रेट अवे डोंट इन्वेस्ट इन दैट, राइट। अब यहाँ पे इट्स जस्ट 21,000, इट्स नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट। देखो यहाँ पे, लेट्स सी, यहाँ पे इट वॉज 21,000, ईयरली रिटर्न इज़ 12%, यहाँ पे इस वाले में इट वॉज 19%, सेकेंड वाले में 18%। So why should you invest in 12%? Don't worry guys, I am coming to this as well. So I hope I answered the question guys. AUM वाला it's not a, there's not a benchmark. It just हमें देखना है किसका comparison में, it's just everything is in comparison with each other, right? Uh, all right, let's proceed. Guys, I want you to understand this concept very carefully. इसको लिख भी लेना अगर if you want to. This is very important concept. देखो जब आप शेयर्स खरीदते हो, व्हेन यू बाय शेयर्स, राइट, तो उसमें एक शेयर प्राइस रहता है। शेयर प्राइस मीन्स लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ साउथ इंडिया बैंक का शेयर लेते हैं, सस्ता एंड इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया बैंक का शेयर है 10 रुपये का, मीन्स अ शेयर प्राइस ऑफ साउथ इंडिया बैंक इज़ 10 रुपी, राइट। तो आप 100 रुपीज़ में कितने शेयर्स ले सकते हो? हाउ मेनी शेयर्स यू कैन बाय इन 100 रुपी? यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स गाइस, आई कैन रीड द चैट नाउ। 10 शेयर्स, राइट। तो अब ये 10 शेयर आपके पास है, दिस इज़ अ यूनिट, दीज आर द यूनिट्स। कितने शेयर आपके पास है? 10 शेयर। और कितने का लिया था? 10 का, राइट। सेम केस वेन एवर यू बाय म्यूचुअल फंड गाइज, लेट मी शो यू ओवर हेयर। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो ना, तो आप कुछ पैसा देते हो, यू पे सम मनी। तो म्यूचुअल फंड आपको क्या करता है, दिस NAV, ये जो NAV है इसको नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। इस NAV को आप समझ लो एक यूनिट का प्राइस है ये। अभी मैं इसको कंसेप्चुअली भी बताऊंगा, डेफिनेशन में भी बताऊंगा, बट अभी समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, आई एम जस्ट बिल्डिंग अ बेस। एक साउथ इंडिया बैंक के शेयर को खरीदने के लिए आपको 10 रुपये देने पड़े। टू बाय 1 शेयर ऑफ साउथ इंडिया बैंक यू पे 10 रुपी फॉर एग्जाम्पल। तो आपने इस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदने के लिए 80 रुपये दिए। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसे देते हो, यू बाय यूनिट्स, आपको यूनिट्स दिए जाते हैं बदले में। जैसे वहाँ पे शेयर्स दिए जाते हैं, यहाँ पे आपको यूनिट दिए जाते हैं। तो एक यूनिट खरीदने के लिए 80 रुपये मिलते हैं, यू गेट 80 रुपीज़ ओवर हेयर। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हेयर गाइज, बहुत ध्यान से सुनना। बिफोर आई ऐड, आई वुड लाइक टू आस्क, तो इट मीन्स क्या ये वैल्यू चेंज होती रहेगी क्या, और इट इज़ अ स्टैटिक वैल्यू? सो इज इट अ डायनामिक वैल्यू और स्टैटिक वैल्यू गाइज? डायनामिक वैल्यू, एब्सोल्युटली अमित, वेरी गुड। जैसे शेयर्स के प्राइस चेंज होते हैं वैसे NAV भी चेंज होगा। नाउ लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर। तो जैसा हम बोलते हैं कई बार, वी हैड लिसन, वी हैव हर्ड दिस थिंग दैट सर हमें शेयर में तभी पैसा लगाना चाहिए, वी शुड इन्वेस्ट इन शेयर्स ओनली व्हेन द मार्केट्स आर डाउन। ऐसा सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस थिंग। सो विल द सेम कंसेप्ट बी एप्लीकेबल ओवर हियर, एट वी शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स व्हेन द मार्केट्स आर लो, या जब मर्जी पैसे लगा दो? यस एब्सोल्युटली गाइस। जब जब म्यूचुअल फंड नीचे गिरेगा, तब तब म्यूचुअल फंड का प्राइस भी नीचे गिरेगा, जैसे शेयर्स के प्राइस नीचे गिरते हैं। तो फॉर एग्जांपल, पहले कोई शेयर था हमारे पास, डैट वाज कॉस्टिंग यू 10 रुपी, 10 का एक शेयर आ रहा था, फिर नीचे गिर के 5 हो गया, तो 5 5 के 2 आ गए, नाउ यू हैव 2 शेयर। सेम केस विल हैपन ओवर हेयर। इफ़ यू बाय अ म्यूचुअल फंड एट हायर NAV, you will get less units if you wait for the right time to invest. So, again, one advice over here, don't just invest in mutual funds blindly, wait for the right times. जब जब मार्केट नीचे गिरे, वेन एवर द मार्केट फॉल्स, इन्वेस्ट एट दैट टाइम्स इन द म्यूचुअल फंड्स। वन मोर थिंग वुड बी कमिंग जस्ट आफ्टर सम टाइम, बट जब जब मार्केट नीचे गिरे, यू इन्वेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ये 80 से तब 60 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है, यू विल गेट मोर नंबर ऑफ यूनिट्स गाइज, राइट। सो यू कैन डू इन दिस वे, राइट। नाउ ये जो NAV है, इट इज़ नॉट डायनामिक एज stock market. Stock market, every second the share prices are going in, going down, going in, going down, right? यहाँ पे होता है वीकली, और मे बी एवरी सैटरडे, मे बी मंथली वंस, और मे बी डेली एट द इवनिंग टाइम्स। मतलब यहाँ पे एकदम से ऊपर नीचे नहीं होता रहता है, इट टेक्स टाइम, बिकॉज NAVs, अब लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। वी कैनॉट टाइम द मार्केट। आरुषि, आई एम नॉट सेइंग कि आपने म्यूचुअल फंड में तब इन्वेस्ट करना है कि अभी मार्केट गिरी अभी, नो, गिरने दो मार्केट को, लेट द मार्केट फॉल, वेट, बिकॉज NAV अभी
एन एकदम से फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, मे बी बाय इवनिंग और मे बी बाय नेक्स्ट डे और मे फ्लक्चुएट हो, that I'm just letting you know. But yeah, and Arushi, one more thing I would like to add: we can't time the markets, but we can wait for our investments. हमें नहीं पता मार्केट कब नीचे गिरेगी, जब लेकिन जब नीचे गिरे तभी इन्वेस्ट करो. You know, people wait, you know, and good things comes only when you wait. All right. Yeah, absolutely, Asutosh. We can time the markets. We can predict some probability is there, right? And if not, even if not, we can wait for the right time to invest. You might have heard Rakesh Jhunjhunwala. He used to just make 3 or 4 investments in 1 year. एक साल में 3 या 4 इन्वेस्टमेंट, पूरा साल फ्री एंजॉय. एक साल में एक इन्वेस्टमेंट कर लो अच्छे से टाइम से, यू विल मेक ह्यूज इनसेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. नाउ लेट्स कम बैक टू एनएवी गाइज. ये 4 लोग हैं guys. Please listen to this concept. ये concept would be the last concept, tricky concept. Once it's clear, mutual fund would be good to go. These are 4 different friends, right? They wanted to buy a chocolate, right? Chocolate थी 40 रुपए की. Chocolate was at 40 रुपी. Everybody contributed 10 each, right? ये 10 रुपए सभी ने इकट्ठे किए, it became 40 रुपी. That 40 rupees AUM. I hope this is clear to everybody. जो collected amount होता है, that is AUM, right? Now they went to a shopkeeper. They purchased a chocolate box. Chocolate में कितने pieces थे? 12. There were 12 pieces. Each one will get 3. चलो सबको 3 chocolate के piece मिल गए. So these are called as units. सबको कितने units मिले? 3. सबको 3 chocolate मिल गई, right? 12 में से सबने divide कर ली. They divided 12 chocolates among themselves. So 3 are the number of units of chocolates, number of units of mutual funds, just like that. जो 10 रुपए की इन्हें चॉकलेट पड़ी, you know, it costed 10 रुपये for 3 chocolates. This 10 rupee is NAV, net asset value. मतलब ये 3 यूनिट्स लेने के लिए, आई एम सो सॉरी, इन्होंने कितना दिया था. एंड अब हमें ये पता लग जाएगा कि एक चॉकलेट का हमें कितना प्राइस पड़ा. डैट वुड बी अराउंड 3 रुपी, 3 पॉइंट समथिंग. सो डैट 3 रुपी वुड बी NAV ओवर हेयर. तो यहाँ पे जो 3 रुपये पर चॉकलेट का पड़ा, डैट इज़ द नेट एसेट वैल्यू. मतलब एक यूनिट का कितना प्राइस पड़ा, इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू. नाउ नेट एसेट वैल्यू इज़ अ डायनामिक नंबर गाइस. इट कीप्स चेंजिंग, राइट? एंड इट्स नॉट इट चेंज एवरी मिनट एवरी सेकेंड. जैसे स्टॉक्स में तो आप अभी तो टुडे संडे फॉर एग्जांपल, बट स्टिल अगर आज स्टॉक मार्केट खुली होती तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं. स्टॉक्स की द प्राइजेज ऑफ स्टॉक्स कीप्स फ्लक्चुएटिंग एवरी सेकेंड, डिमांड एंड सप्लाई, राइट? बट नेट एसेट वैल्यू इट डजंट हैपन इन दिस वे. इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फंड मैनेजर. जो आपका यहाँ पे फंड मैनेजर होंगे, जो मैंने आपको यहाँ बताया था शुरू में, AMC में फंड मैनेजर इज़ द हेड. दिस इज़ द पर्सन हु विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ NAV, राइट? NAV का फॉर्मूला रहता है, इट इज़ जस्ट द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट, डिवाइडेड माइनस द लाइबिलिटी, जो खर्चा वर्चा है, और टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. बट देयर इज बिट कॉम्प्लिकेशन इन दिस. टोटल नंबर ऑफ एसेट्स कीप्स चेंजिंग, लाइबिलिटीज ऑल्सो कीप्स चेंजिंग. आज आपने पैसा डाला, आप कल पैसा निकाल सकते हो, परसों फिर डाल सकते हो, फिर निकाल सकते हो. दिस इज़ वेरी डायनामिक प्रोसेस. इट इज़ हैपनिंग एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे. सो दे कैलकुलेट NAVs. सम म्यूचुअल फंड कैलकुलेट NAVs एवरी इवनिंग. को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे NAV कब कैलकुलेट हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस NAV वाज कैलकुलेटेड ऑन 2/5/2025. ये इस डेट को कैलकुलेट हुआ है. री होती फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट वुड हैव फॉलन, तो ये NAV कब कैलकुलेट होता? नेक्स्ट वर्किंग डे में. मे बी यू हैव टू सी व्हेन द NAVs आर कैलकुलेटेड. तो स्टॉक मार्केट का फॉल इस NAV में कब आएगा? नेक्स्ट वर्किंग डे. तो यू हैव टू वेट. और हम लोग क्या करते, अदरवाइज हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर देते अगर ये चीज़ हमें पता नहीं होती? संडे को ही लगा दो पैसा, सैटरडे को ही लगा दो पैसा, तो आप ज़्यादा महंगा स्टॉक्स, ज़्यादा महंगा NAV मिलता आपको. यू वुड हैव परचेज्ड लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स, आपको म्यूचुअल फंड महंगा मिलता. आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी. सो यू हैव टू वेट गाइज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर. इन्वेस्ट करने से पहले यू हैव टू सी व्हाट इज़ द NAV. व्हाट इज़ NAV? वो ऊपर है या नीचे है? शुड यू एक्सपेक्ट नीचे गिरना? आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरी है, तो अगली कैलकुलेशन जैसे ही आएगी, जो फंड मैनेजर है उसको घटा के बताएगा. देन यू विल हैव अ बेटर डील. गाइज आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके,
So it is a dynamic value, right? So it is not the, it is a unit pricing, means NAV होता है एक यूनिट म्यूचुअल फंड का प्राइस इन वेरी सिंपल टर्म्स, राइट? एंड NAV से हमें ये पता लगेगा कि हमें म्यूचुअल फंड्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हेन वी शुड बी इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू दिस वन. सो यहाँ पे वेन एवर यू गो, आर्बिट्राज इन वट सेंस आरुषि, यहाँ पे कैसे आर्बिट्राज का आप, कैन यू इलेबोरेट ऑन दिस प्लीज? सो दिस इज हाउ NAVs will work. A price mismatch in mutual fund, how that could be? अच्छा अच्छा अच्छा, you are saying that that you would buy, जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो स्टॉक में पैसे लगा दो, एंड व्हेन द म्यूचुअल फंड्स आर लो आप वहाँ पैसे लगा दो. Could be, but you know, it would be very less time and the arbitrage would be very very small. The volume should be very high otherwise to make profits. You need to have a lot of money for arbitraging over here. NAV mutual fund investment based on the day of investments or the day of the allotments isn't. See, NAV is calculated every day. Mutual fund ना profit कैसे कमाता है? What is the purpose of mutual fund? And guys, it's a good job. Uh, Many of you are starting their career in finance. If I tell you, आप ऐसा करो, आप कोर्सेज करो. वैसे तो आई विल कंप्लीट मैनी ऑफ द थिंग्स इन द क्लास इट सेल्फ. यू डोंट नीड टू डू स्मॉल स्मॉल कोर्सेज आउटसाइड, राइट? ये कोर्सेज का, यू नो, दीज थिंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग, रचना राणा डे एंड ऑल अदर, यू नो, यूट्यूबर्स, दे चार्ज 7,000 and 10,000 for just, you know, the paid courses. Though there these courses are just, you know, 2 or 3 hours courses and इतना ही पढ़ाते हैं वहाँ पे भी. I would like you to go for या तो CFA करो and go for the practical stuff. Try to do the things practically so that you have the knowledge and get into research part. Research in hedge fund, get into a mutual fund. अच्छी job है, it's a good job, guys. Now coming to expenses. Now mutual funds, how they make money. See, for example, I took 100 crore rupee from you, from all of you. So 100 crore would be easy to understand. अगर मैं 100 करोड़ का 2% भी लूँ, if I take 2% from that 100 crore rupee, so I am just making 2 crore rupee, guys. बैठे बैठे I am making 2 crore rupee. So these are the expenses. म्यूचुअल फंड अपना एक्सपेंस पहले ही कैलकुलेट करके रखते हैं, राइट? नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग ओवर हियर, एग्जिट लोड. अब यहाँ पे होता क्या है, यू हैड इन्वेस्टेड योर मनी टू मी. अगर आप अगले ही दिन ही पैसा मांगने आ जाओगे, इफ़ यू नेक्स्ट यू विल कम, यू नो, आस्किंग योर मनी, तो मेरी तो इन्वेस्टमेंट हिल जाएगी ना सारी. हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, आई टेक द मनी फ्रॉम यू एंड आई इन्वेस्ट द मनी ऑन योर बिहाफ, राइट? अब वो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा है, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ डेज मार्केट्स नीचे गिरी हैं, म्यूचुअल फंड्स आर इन लॉसेज, एवरीथिंग इज इन लॉसेज, एवरी और मैनी इन्वेस्टमेंट्स आर इन लॉसेज. अब उसमें से फॉर एग्जांपल आशुतोष आ गए मेरे पास, आशुतोष कि सर मुझे मेरा पैसा वापस दो. पैसा तो मैं वापस दे दूंगा आशुतोष को, बट डोंट यू थिंक मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ के पैसा दूंगा लॉस में? जैसे आपके काफ़ी शेयर्स इस टाइम लॉस में होंगे, राइट? तो वो शेयर्स अभी निकालोगे तो लॉसेज हैं बिकॉज मार्केट्स आर रेड राइट नाउ. तो आप, म्यूचुअल फंड क्या करता है, एक लॉक इन पीरियड रखता है. देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड कि इस टाइम से पहले जो पैसा मांगने आया उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी. देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड दैट बिफोर दिस टाइम इफ़ यू रिडीम योर म्यूचुअल फंड यू हैव टू पे अ पेनल्टी. जस्ट लाइक FDs एंड RDs, यू माइट हैव हर्ड FD का एक लॉक इन पीरियड होता है, तो उससे पहले निकालो, यू कैन रिडीम बट यू हैव टू पे अ पेनल्टी. सेम विद म्यूचुअल फंड्स. So whenever you invest in a mutual fund, you have to read this thing, guys. Very very important. आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड कितना है. इज देयर ए लॉक इन पीरियड और नॉट? इट इज़ अ गुड थिंग, राइट? फॉर स्वर शेखर दत्ता, स्वरण शेखर दत्ता, या ELSS में भी होता है, एंड आई थिंक द चाइल्ड म्यूचुअल फंड प्लान्स उसमें भी होता है. देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड एंड देयर आर अदर म्यूचुअल फंड्स एज वेल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट? नाउ एक्सपेंसेस, हाउ इट वर्क्स. अब एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, ये कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल आज मुझे स्वरण शेखर दत्ता ने, ही गेव मी 100 रुपी टू इन्वेस्ट. डू यू थिंक म्यूचुअल फंड विल इन्वेस्ट 100 रुपी पूरा का पूरा? नो. म्यूचुअल फंड विल टेक 2 रुपी इन इट्स पॉकेट. पहले वो डाल लेंगे स्वर्ण शेखर को बताने से पहले कि भाई 2 रुपये तो आ गए जेब में, एंड देन इन्वेस्ट द रिमेनिंग अमाउंट. और इट कुड बी इन द वे कि जब स्वर्ण, यू नो, शेखर दत्ता, व्हेन ही विल बी रिडीमिंग द म्यूचुअल फंड, सो
the 2 rupee expenses will be, would be 2% of the expenses would be deducted from the profits, would be deducted the entire amount. So this is how it works, regardless he made profits or losses. मैं एक बात आपको बता देता हूँ, इवन इफ आरुषि हैड गिवन मी हर इन्वेस्टमेंट, 100 रुपये उन्होंने दिए कि सर इन्वेस्ट कर दो, और वो पैसा घट के 80 हो गया, तब भी म्यूचुअल फंड विल चार्ज एक्सपेंस रेशो। म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस को चार्ज करेगा ही, इवन इफ देर इज अ लॉस, इवन इफ देर इज अ प्रॉफिट। वाई? द थिंग इज दैट I am having a team who is working with me, who are my employees. I have to give them salaries, AC का rent आएगा, electricity rent, administration expenses. So those expenses would be weird from whatever money you are giving me to invest. तो आप जो मुझे पैसा दोगे उस पैसे को I will be using that money for my day to day operation expenses as well. So as such, it is a percentage which is deducted on AUM, और इट कुड बी सेड लाइक दिस कि वो पैसा आप जब मुझे दोगे उसी में से कुछ पैसा उसमें से डिडक्ट हो जाता है। दो यू विल बी सीइंग 100 रुपये, आपको NAV दिखेगा, बट एज सच मैंने डिडक्ट कर लिया होगा। एंड वंस द प्रॉफिट्स आर मेड, तो प्रॉफिट्स के ऊपर फिर से डिडक्शन चलती है। सो म्यूचुअल फंड्स आर वेरी स्मार्ट ऑन दिस गाइज, दे वॉन्ट लेट यू नो आपके एक्सपेंसिस कैसे कैसे कट बट इट विल बी डिडक्टेड। ओके, एनी डाउट्स टिल नाउ गाइज? नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल। लेट्स सी गाइज, अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ें और देखनी है। How to do mutual fund houses ensure compliances? See, compliance, Tanisha, is a good question. For compliances, there are custodians and trustees, and third party, you can say, uh, third party custodians are also there. Third party audits are also there. So basically, जो answerable होते हैं trustees होते हैं. Trustees are more answerable. AMC का काम, the role of AMC is just to invest. Role of custodian is just to make sure the transaction is complete. Role of registrar is to see whether you all people have received your dividends, your redemptions, or aapka paisa, your money had reached, your investment had reached to the mutual funds. So it's only the trustees who are responsible for all the things doing in a all the things should be going in a good way, in with good integrity, with good you can say trust, and with good, you can say, there should not be any fraud going on. So trustees are responsible for this. Okay, now coming to, guys, please see over here now. अब यहाँ पे देखो, launch date was done, AUM was done. Now this is total expense ratio, TER. वैसे तो जितना ज़्यादा होगा, हायर इट इज़, आपका नुकसान है। देर इज़ अ यू विल बी लूजिंग दिस मनी, मतलब ये पैसा म्यूचुअल फंड अपने लिए रखेगा। दिस इज़ द एक्सपेंस रेशो दे आर चार्जिंग फ्रॉम यू। इतना पैसा, दिस इज़ 1% गाइज, राइट? दिस इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट यू विल बी मेकिंग टू मी। आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया, तो 1 लाख में से 1000 एंड दिस मच अमाउंट वुड बी केप्ट बाय द म्यूचुअल फंड। अब जो प्रॉफिट्स आएंगे उसको भी ऐड करेंगे, टोटल AUM सिंह। और अगर आपने मुझे 1 लाख दिया था, and from that 1 lakh I made your money, I doubled your money, I made it 2 lakh. So now this expense ratio would be calculated on 2 lakh, not on the investments, right? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर वैसे तो जितना कम हो उतना अच्छा, राइट? इट्स अ गुड वे ऑफ थिंकिंग एंड गुड वे ऑफ परसीविंग थिंग्स। एक और तरीका हो सकता है दैट म्यूचुअल फंड कुड बी चार्जिंग मोर मनी बिकॉज उसके पास ज़्यादा अच्छी टीम है, ज़्यादा अच्छे रिसर्च करने वाले लोग हैं। Means the mutual fund could be charging more money because they are having more good employees, they are having good research teams. कई बार ज़्यादा देने का नुकसान नहीं है, रिगार्डलेस आपका रिटर्न अच्छा आ रहा है। तो ऐसा ना हो पैसे बचाने के चक्कर में रिटर्न भी अच्छा ना आए, राइट? यस आरुषि, वेरी गुड। और अगर म्यूचुअल फंड्स आर मोर डायनामिक एंड मोर चर्निंग रेट इज़ वेरी हाई, तब भी ये ज़्यादा होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में ये ज़्यादा रहता है। नाउ लेट मी रिपीट माई सेल्फ, टोटल एक्सपेंस रेशो वैसे तो ज़्यादा होगा तो नुकसान होता है, आई डू एग्री विद डैट। मीन्स यू हैव टू पे मोर एक्सपेंसेस, कमीशन ज़्यादा होगा। बट इफ़ द रिटर्न्स आर हाई एंड इफ़ द म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग गुड थ्रू आउट, तो थोड़ा ज़्यादा दिया कोई गलत बात नहीं है। इंस्टेड कि पैसे बचाने के चक्कर में आप गलत जगह फंस जाओ, राइट? सो अगेन, अब यू वुड बी आस्किंग मी कि सर मुझे ये बताओ कि इसमें कितना नंबर सही होना चाहिए। सो द नंबर्स वुड वेरी,
अब यहाँ पे ये है, दिस इज फॉर फ्लेक्सी कैप इक्विटी। अब आप डेट फंड में देखोगे ये नंबर कम हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई डोंट गेट कंफ्यूज डेट फंड क्या होता है, पर यहाँ पे डेट फंड में सी ये हाफ हो गया 0.5, वहाँ पे कितना था 1.5, राइट। सो दिस विल चेंज। सो दीज नंबर आर कंपेरेटिव। हाँ, जो भी नंबर अभी तक हम कर रहे हैं ए यू एम के टी ई आर के, दीज आर फॉर जस्ट कंपेयरिंग इट विद द सिमिलर फंड्स। लाइक पी ई रेशो होता है ना, पी ई रेशो इज यूज फॉर द सिमिलर कंपनीज विद इन द सेम सेक्टर। सिमिलरली टी ई जो एक्सपेंस रेशो है, इट शुड बी यूज विद इन द सेम सेक्टर फंड्स। एक जैसे फंड्स को कंपेयर करने के लिए है, देर इज़ नॉट अ बेंच मार्क ओवर हेयर। आपको ये देखना है कि बाकी का कितना है, बाकी के कंपैरिजन में कितना है, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ यार ये लड़का तो बहुत ही सो टॉल, दिस गर्ल इज सो गुड लुकिंग, अब गुड लुकिंग का मतलब विद रिस्पेक्ट टू हुम, विद कंपेयर टू हुम, दैट इज अ कंपेरेटिव थिंग। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेरेटिव। गाइज आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो AUM शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, एक्सपेंस रेशो थोड़ा हाई होगा चलेगा, बट ट्राई टू अवॉइड, जितना सस्ता रहा उतना बढ़िया, उतना यू विल मेकिंग मोर प्रॉफिट्स, राइट। हाँ, सेक्टर आई विल बी कमिंग बिकॉज वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स नाउ। नाउ गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ yes, apple to apple and oranges to orange, so these are the types of mutual funds, guys. So see, ये तो हमने कर लिया, we had already discussed this thing. So म्यूचुअल फंड शुड बी बैलेंस्ड मेरे ख्याल से, तो लेट्स सी हाउ इट शुड बी। सो अब आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सी गाइस, हुआ क्या, द म्यूचुअल फंड मार्केट इज ग्रोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज इक्विटी में पैसा लगाने को, स्टॉक्स में पैसा लगाने को बहुत दिमाग लगता है, म्यूचुअल फंड में तो नहीं है। जस्ट 1 or 2 लेक्चर्स एंड यू आर गुड टू गो, इतना ही नॉलेज चाहिए। जैसे मैंने आपको IPO वाला क्लास लिया था, दैट IPO क्लास वॉज complete एंड दैट रिसर्च इज ऑल्सो अराउंड 99% टाइम्स एक्यूरेट, बैंग ऑन। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा है, दे आर ओनली फ्यू पैरामीटर्स दैट यू नीड टू सी एंड यू आर गुड टू गो। नाउ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में, देर इज़ वन ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड्स। सी लेट्स सी, यहाँ पे भी होगा ये लिखा हुआ, लेट्स क्लिक एनी वन ऑफ दिस, let's see this one. In the meanwhile, let's see this one. So यहाँ पे when you'll see category status, it is open ended scheme, right? Sometimes it would be mentioned over here close ended, sometimes hybrid. Now it means open ended का मतलब है आप कभी भी पैसा लगा सकते हो इसमें, आज कल परसों जब भी मन हुआ you can invest it, it is open. सो इट इज़ ओपन फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे आप पैसा कभी भी लगा सकते हो, यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम एंड यू कैन विड्रॉ योर मनी एनी टाइम। सो देर इज़ नो यू कैन से लिमिटेशन दैट यू कांट इन्वेस्ट और यू कांट विड्रॉ योर मनी। आज पैसा लगाया, मन हो गया 3 महीने बाद निकालने का या अगले हफ्ते निकालने, कैन विड्रॉ। You may have to pay some penalty that we will be seeing, but in the meanwhile you can invest and redeem any point of time, right? Closed ended mutual funds are also there. It is a better fund in terms of investments. Why? आपने पैसा लगाया for 10 years, अब इसमें आपका भी बेनिफिट है एंड म्यूचुअल फंड का भी बेनिफिट है। वाई? मैं म्यूचुअल फंड हूँ, मैंने आप सबसे पैसे लिए, मैंने रिलायंस के शेयर्स में लगा दिए एंड 10 साल शांति से बैठूंगा मैं भी, आप भी, बिकॉज आई विल नॉट बी टचिंग द इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या होगा, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगी, इट विल गिव बेटर रिटर्न्स एंड द म्यूचुअल फंड, द फंड मैनेजर इज ऑल्सो रिलैक्सड कि चलो शांति से पैसा ग्रो करेगा एंड यू विल मेक प्रॉफिट्स। बट इन ओपन एंडेड, जैसे आरुषि ने आज पैसा लगाया, कल तनीषा ने पैसा मांग लिया, परसों श्रेय ने पैसा लगाया, फिर अगेन उमंग ने पैसा मांग लिया। सो मनी इज़ फ्लोइंग इन, फ्लोइंग आउट, फ्लोइंग इन, फ्लोइंग आउट। तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट हिल रही है कि रिलायंस का शेयर आज खरीदा, कल फिर बेचना पड़ेगा फिर। सो चर्निंग इज़ नॉट गुड थिंग एज सच, बट ओपन एंडेड इज़ गुड कि इसमें ये बेनिफिट ये रहता है कि यू कैन इन्वेस्ट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू कैन रिडीम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लोज एंडेड में देर इज़ अ लॉक इन पीरियड, राइट, अ लॉन्ग लॉक इन पीरियड। यू कांट, वंस यू हैड इन्वेस्टेड, जब तक वो पूरा पूरा फंड एक्सपायर नहीं होगा तब तक यू कांट रिडीम इट। एंड देयर वाज Swaran Shekhar was asking that ELSS में ही होता है लॉक इन पीरियड, सो इट्स नॉट लाइक दैट। सी यहाँ पे ये रहता है, सी सो लॉक इन पीरियड ज़्यादा तो चाइल्ड फंड्स में होता है एंड ELSS में, पर यहाँ पे भी है।
because if you redeem it before this, you have to pay this 10% of this. So there is a specific penalty which they had mentioned. So these terms and conditions will be changing for different म्यूचुअल फंड. तो इसको एग्जिट लोड बोलते हैं कि आप जब उसको निकालोगे, आप जब निकलोगे म्यूचुअल फंड से, तो डू यू हैव टू पे एनी पेनल्टी फॉर डैट, right? So this is how it goes. So we are going to see this website again complete way, but we are just understanding the concept. I hope this is clear to everybody. uh, Close ended till maturity, absolutely, Anjali, till the mutual fund matures or till it launches any NFO, till it opens. And interval mutual funds, it is combination of both. ओपन होगा, फिर क्लोज हो जाएगा कुछ टाइम, फिर ओपन होगा, लाइक दैट. दिस इज हाउ इट वर्क्स. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग गाइज. यहाँ पे दो तीन चीज़ें और हैं. क्लोज एंडेड इज लाइक FD. हाँ. सो नाउ अब ये जो डिफ्रेंशिएशन है, अब आई टुक द मनी फ्रॉम यू. नाउ वेयर द म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग द मनी, pooled from all of you, that is this. This is this kind of, you can say, differentiation means debt funds, equity fund and hybrid fund. अब आता है मेन चीज़. यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड गाइज, आई मेट विद वन ऑफ माई फ्रेंड. ही इज़ इन मर्चेंट नेवी, सो मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ, अच्छा पैसा कमा रहा है, बट ही हैड नो आइडिया. तो उसने कहीं भी पैसा लगाया था, जस्ट इन्वेस्टेड एवरीवेयर, वट एवर ही फाउंड गुड टर्म्स, एंड उसने पैसा लगा दिया था पढ़ने में जो अच्छा लग रहा था, एंड ही इज़ इन बिग लॉसेस. So guys, people don't understand there are so many types of funds. So let's see how it would work. Now again, very very important, I want you to focus over here guys. चलो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ये कर लेते हैं. There are two types of funds. यहाँ पे एक टाइप और है, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान. सी, रेगुलर प्लान वो वाला होगा जो आपको कोई बेचने की कोशिश करेगा. रेगुलर प्लान इज दैट प्लान व्हेन समवन इज ट्राइंग टू सेल इट टू यू, पिच इट टू यू, कि सर ले लो, पीछे पड़ जाएगा कोई आपके. बट उसमें आपका बेनिफिट कम है, उनका ज़्यादा है. दे हैव हायर बेनिफिट्स. वाई? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एंड इट्स अ गुड जॉब गाइज एज सच. यू कैन, आप NISM का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाला सर्टिफिकेट लो एंड यू कैन बिकम लाइक अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. हाउ इट वर्क्स? मैंने आपको म्यूचुअल फंड बेचा, राइट? आई विल गेट कमीशन फॉर सेल्स फर्स्टली. वट एवर इन्वेस्टमेंट्स यू विल बी डूइंग, तो उसका 1% और समथिंग अमाउंट डैट, जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, आई विल बी गेटिंग डैट. तो जो 1% आपको मिलना चाहिए था, वो किसे मिल रहा है? आपके डिस्ट्रीब्यूटर को. तभी आप, वेन एवर यू गो टू अ बैंक पीपल दे ट्राई टू सेल यू अ म्यूचुअल फंड. वाई? बिकॉज दे आर गेटिंग सेल्स कमीशन एंड दे आर गेटिंग द कमीशंस ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू आउट लाइफ. आपने 10 साल म्यूचुअल फंड चलाया, दे विल बी गेटिंग द मनी, some commission on that. So it's a good business and lifetime earning. So these funds are called as regular funds, indirect funds. And there are second types of funds which are called as direct funds. ये अच्छा है, इसमें there is no middleman, right? So the thing is that if there is no middleman, so it's you who will be getting the entire profits. So that's why many broker firms have started giving this. You can directly invest in the mutual fund. अब now coming to the practical tip, आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. Now there are many platforms like Zerodha, Grow and many more. They have started giving direct plans. यहाँ पे डायरेक्ट प्लान मिलना शुरू हो गए हैं. तो एक तो आप वैसे इन्वेस्ट करो, राइट? इफ़ समवन इज़ कमिंग टू सेल यू अ म्यूचुअल फंड, प्लीज़ डोंट डू डैट, बिकॉज दे आर, आपका 1% कम रिटर्न आएगा. कम से कम 1% तो लेके चलो. सो वाई टू वेस्ट 1%, राइट? तो वहाँ से मत इन्वेस्ट करो. और द थर्ड वे यू कैन डू, ओपन द वेबसाइट ऑफ म्यूचुअल फंड. एक वेबसाइट, जो म्यूचुअल फंड होता है, दे हैव देयर ओन वेबसाइट्स. वहाँ पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो. डैट विल ऑल्सो सेव योर मनी. सो टिप नंबर 2, यहाँ पे आपको देखना है, इट शुड बी अ डायरेक्ट प्लान. जितना हो सके ट्राई टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड वेयर यू शुड बी इन्वेस्टिंग. तो जब जब यहाँ पे रेगुलर प्लान लिखा है, सी यहाँ पे लिखा है रेगुलर प्लान, तो इट्स अ ट्रिक कि कोई आपको और सेल कर रहा है एंड ही इज़ हैविंग अ कमीशन. जब जब इस रेगुलर प्लान की जगह यहाँ लिखा होगा डायरेक्ट प्लान, इट्स अ गुड थिंग टू बाय. Guys, I hope you are with me, everybody. You are getting the terms. Yes, no? Can you hear me? All right. Now,
अब आते हैं इस सारे में, सी देयर सो मैनी टाइप्स ऑफ फंड्स, सो मैनी टाइप्स ऑफ फंड्स, इनसेन। हैव यू एवर गॉन टू अ सबवे? जैसे आप सबवे या मैकडोनल्ड जाओगे तो दे विल आस्क यू विच टाइप ऑफ ब्रेड, विच टाइप ऑफ सॉस, विच टाइप ऑफ फीलिंग्स ऑफ गॉड, सो मैनी क्वेश्चन सेम हैपन ओवर हियर। सो अ म्यूचुअल फंड ने आपसे पैसा लिया, म्यूचुअल फंड टुक मनी फ्रॉम यू, एंड वेयर दे आर इन्वेस्टिंग दैट मनी यू विल गेट टू नो फ्रॉम हेयर। सबसे पहले आते हैं डेट फंड्स। सी यहाँ पे लिखे डेट 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 डेट, इट मीन्स दे टुक द मनी फ्रॉम यू, राइट, एंड दे इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स में पैसा लगाया। Now that bonds, those bonds could be corporate bonds, could be government securities, could be repos as well, could be private bond, risky bonds as well, could be government securities, right? Could be very short term. तो यहाँ पे होता है these types of mutual funds are called as debt mutual funds, right? डेट म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न रेट है, जितने भी डेट म्यूचुअल फंड है सभी के सभी, इन ऑल दीज म्यूचुअल फंड्स यू विल बी गेटिंग 5% टू 7%, 5% से 7% की रिटर्न मिलेगी। ऑल दिस थिंग, ऑल इन ऑल द म्यूचुअल फंड, लेट्स ओपन सम कॉर्पोरेट बॉन्ड, दीज आर रिस्की बॉन्ड्स, ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। लेट्स सी हाउ मच रिटर्न यू आर गेटिंग, 6%। ये देख लो, 8% किसी किसी ने टच किया है, बट जनरली इट इज़ 5 to 7%, राइट। नाउ आई विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, should you be getting investing your money in debt funds, yes or no guys? Anushka is saying no, rest of the class, why no guys? एक why भी दे दो, why you should not be investing in debt funds? less returns गाइस, सीधा सीधा, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट भी 5-6% है, इन्फ्लेशन रेट इज़ अगेन 5-6%, और 5-6% में ही आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो, व्हाट इज़ द पर्पस, पहली बात, राइट। सेकंड थिंग, 5-6% तो यू विल गेट इन एफ डी एज वेल, तो इंस्टेड आप एफ डी में लगा लो, और इंस्टेड ऑफ दिस इन्वेस्ट इन पी पी एफ। पी पी एफ तो सभी खुलवा लो, ऑल द क्लास मेम्बर्स दे शुड हैव अ पी पी एफ अकाउंट, वो तो होना ही चाहिए। 7%, 7.1% यू विल बी गेटिंग इन द पी पी एफ। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के क्यों लेन, वाई टू टेक रिस्क एज वेल, राइट। ये तो फिर भी थोड़ा रिस्की था, अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाला निकाल लूँ तो यू विल बी गेटिंग लेसर। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, गिल्ड फंड्स, होता क्या है, जैसे जैसे यू विल इन्वेस्ट इन द सेफर फंड्स, द रिटर्न्स गेट लेसर एंड लेसर, एंड वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द इन riskier funds, your returns will become bit higher actually. तो होता क्या है, जनरली इन म्यूचुअल फंड्स, यू इन डेट फंड्स यू विल बी गेटिंग रिटर्न्स ऑफ 5 to 7%। 7% से ऊपर जाए इट्स वेरी रेयर एक्चुअली। thirdly, you should not invest in the debt funds because it's a better you invest in FDs, or you invest in RDs or PPF. PPF is much better option. This is children fund. There was a question that there is a lock-in period. So children funds give you better returns, right? It's not a debt fund. तो यहाँ पे आपको better return मिलेगा, but the thing is that यहाँ पे there would be a lock-in period. Lock-in period, let's see over here. So यहाँ पे you can see there is a lock-in period, guys, right? And longer the lock-in period, better it is. यहाँ पे देख लेना, there is a lock-in period in ELSS, and in children funds there are some lock-in periods. So I will be coming to this thing again because these are specific funds, utility funds. Coming to equity, equity is good to invest. पहली बात, अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो इक्विटी से स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ इक्विटी में भी देयर आर ऑप्शंस। रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ यू इन्वेस्ट इन रिस्की कंपनीज, एब्सोल्युटली, मीन्स इफ द म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग इन रिस्की कंपनीज, yes, absolutely the return would be higher. If the mutual funds are investing in big companies, large cap companies, right, blue chip companies, तो उसमें रिटर्न्स थोड़े कम होंगे बट सेफ होंगे, it will be safe. Now let's ask you a question, guys. Can mutual fund default your money? क्या म्यूचुअल फंड भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं गाइस? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस थिंग कि म्यूचुअल फंड ने डिफ़ॉल्ट कर दिया हो? Absolutely, guys. Yes is the answer. And Franklin, very good, Sonu Shekhar. Franklin was the example. उन्होंने they invested the money in bonds.
कोविड आ गया, कोविड में बॉन्ड इज अ लोन बेसिकली, राइट? जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था दे डिडंट हैव द मनी टू रिप्लाई टू रिटर्न इट बैक, लोगों के पैसे फंस गए. So yes, mutual funds can be risky, right? So if you are starting a beginner, start investing in equity large cap or mid cap or just equity large cap. These will give you better returns, stable returns. यहाँ पे रिटर्न आपका 18% टच कर जाता है. It can touch 18% as well. And if everything goes fine, it can touch 20% as well. So mid cap and large caps are good funds to invest. So how to see? पहले हमें देखना है यहाँ पे AUM should be high. तो यहाँ पे देखो AUM is high for the which fund? 36,000 crore rupee they are having, guys, in their AUM, right? This is the expense ratio. ये हमें देखना है ये fund कब start हुआ, 2010 for example. It's good. We need to see the date. We need to see the AUM and total expense ratio. It's not done yet, guys. We are just doing it, right? And उसके बाद रिटर्न 19%. इट्स गुड. 19% जब से लॉन्च हुआ है. एंड ओवरऑल 5 years it is 23%, 3 years 14%. This 1 year return is less, चलो, because of stock market fluctuation. So overall, guys, if I told you, it can touch 18%. ये वाले mutual funds, these are better. No, so let's see, there are multiple funds within this. अब यहाँ पे equity large cap, equity mid cap, large cap means the mutual fund will be investing in big companies, mid cap in small companies, multi cap in various types of companies. So let's see, the returns would be again 16, 20%, 19%, but these are quite young. These all funds are very young. So there's only this fund, ICICI Prudential Multi Cap. Are there legal obligation for mutual fund to Yeah, it's a very good question, guys. Tanishka, very good question. Let me show you one more thing. Guys, many of you have not done equity research. अभी तक तो नहीं किया है काफ़ी ने, है ना? और हमें अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तो बेस्ट तरीका क्या रहता है? म्यूचुअल फंड ढूंढो अच्छे टॉप के, राइट? फिर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में जाओ एज़ पर तनिष्का सिंह. और म्यूचुअल फंड ने अपनी इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज़ की होती है. दे हैव टू डिस्क्लोज इट, right? So they have to disclose, they have to give a portfolio document every month. What happens in that, they have to disclose where they had invested the money. तो जहाँ जहाँ टॉप के म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया है ना, उन कंपनीज को अलग से लिख के रख लो. तो टॉप के 10 म्यूचुअल फंड ढूंढो, फाइंड टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स, सी वेयर दे हैड इन्वेस्टेड इट, वेयर दे आर इन्वेस्टिंग द मनी, वो पैसा कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, एंड उन कंपनीज को साइड में शॉर्टलिस्ट करो. एंड फिर उसमें से टॉप की 4-5 कंपनी में पैसा लगा दो. अपना दिमाग भी नहीं लगाने का, एंड बेटर रिसर्च वाली कंपनीज भी आपको मिल जाएंगी. एंड यू कीप द आई ऑन दिस पोर्टफोलियो. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज लेट मी रिपीट माई सेल्फ. देखो, हमें शेयर्स में पैसा लगाना है. इफ़ वी नीड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, हमें नहीं पता कौन सा शेयर कैसा काम कर रहा है. वी डोंट नो, एंड वी हैव नॉट लर्न द इक्विटी रिसर्च येट, बिकॉज क्लास में तो अभी पढ़ाया नहीं है. नाउ वट यू कैन डू, आप टॉप के म्यूचुअल फंड्स निकालो, फाइंड द टॉप म्यूचुअल फंड्स विच आर परफॉर्मिंग गुड, राइट? वो हम सीख लेंगे अभी, और सीख रहे हैं. एंड दीज म्यूचुअल फंड्स दे हैव टू शो वेयर दे आर इन्वेस्टिंग द मनी. उनको बताना ही पड़ता है. सो व्हेन यू स्क्रॉल डाउन इन दिस वेबसाइट, सो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है कौन से सेक्टर में पैसा लगाया है, एंड कितने % पैसा लगाया है, एंड कौन सी कंपनीज़ में पैसा लगाया है. नाउ आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप इन कंपनीज़ में डायरेक्टली पैसा लगाओ, बट आप इन कंपनीज़ को साइड में लिख के रख लो. यू जस्ट राइट इट डाउन. सिमिलरली अप्लाई द सेम थिंग. फिर टॉप 10 म्यूचुअल फंड, उन्होंने जहाँ जहाँ आपका पैसा लगाया है, वेयर दे हैड इन्वेस्टेड द मनी, यू जस्ट राइट दोज कंपनीज डाउन. And amongst those 50-60 companies, shortlist 5-10 companies you can invest your money. It is easy way round of investments. Not applicable means, इसका मतलब है they had invested in some non-equity instruments as well. That could be real estate, that could be gold as well, in other instruments as well. But we can see over here which companies they had invested in. Let's see for some another company. This was multi-cap. So let's see this one. Let's see this one. So when I scroll downwards, minimum amount, Sakshi, you can start from as small as 100 rupee depending, but 100 रुपए से भी start कर सकते हैं. You can start from 100 rupee. So see, इन्होंने भी पूरा बताया where they had invested the money. हर कंपनी, every mutual fund, they have to disclose
where they are investing the money. I hope you are getting the point, guys. So this is how it works. तो यहाँ पे ये जो कंपनीज के नाम लिखे हैं ना, आई वॉन्ट यू टू जस्ट शॉर्ट लिस्ट दीज कंपनीज डाउन. यूज दीज कंपनीज फॉर योर इक्विटी रिसर्च और फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, इंस्टेड कि आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करो. गाइज आई होप यू क्लियर, आई क्लियर दिस थिंग. कीपिंग सम AUM in cash or suddenly, okay, does mutual fund compliance percentage of cash in AUM for sudden withdrawals and falls? All right, guys, any other doubts? Swarn Shekhar, absolutely. They have some criteria. They have some liabilities as well. They have some loans for this as well. They have some liquid cash for immediate withdrawals. Yes, absolutely, they have that. And for this, sometimes if the withdrawal are too high, they take loans as well, immediate loans, because they take loan against their assets as well. Over bank overdraw, they can do that as well. They have some liquidity, but that liquidity is not that to compensate higher amount of withdrawals or redemptions. If the withdrawals become very very high, then they take overdraws from the bank overdraw. Growth plan means, I'm coming to that, guys. All right, coming back to the equities, guys, I hope you, we gave a trick, I gave you a trick to all of you, that आप म्यूचुअल फंड जहाँ जहाँ पैसा लगाते हैं आप उन कंपनीज में नज़र रख सकते हैं. यू कैन हैव एन आई, बिकॉज म्यूचुअल फंड के पास टीम होती है, दे हैव टीम्स जो रिसर्च करती है. आपके पास टीम नहीं है, यू आर जस्ट वन मैन आर्मी. तो हम लोग उनकी रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए. हाँ, आई एम कमिंग टू दैट. ओके guys, it's not done yet. Mutual fund is a long topic, but we are trying to relate it practically as well, ताकि मैं चाहता हूँ you can start investing in mutual funds. Now large cap हो गया, ये हो गया. हाँ, contra fund आ गया. Contra as the term itself suggests you, they invest in risky companies. Let's see contra में कितना % return आता है. 15%, 14%. Let's open a company where they are investing. गाइज आई वॉन्ट यू टू सी, ये रिसर्च जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, आई वॉन्ट यू टू डू इट एट ए होम एज वेल, राइट. सो अभी हम वी विल बी सीइंग दिस फर्दर एज वेल. नाउ लेट्स सी द पोर्टफोलियो. सो इन्होंने कहाँ पैसा लगाया? सी गाइज, दे हैड इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप, लार्ज कैप. सो दे हैड इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप एज वेल. सो दीज आर द कंपनीज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा. इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाया है. सो गाइज इट मीन्स कुछ तो है इसमें, that there is something that in these companies they may do good in future because they have done some research on this. So thing is that हमें इनकी रिसर्च को यूज़ करना है अपने लिए. वी कैन यूज़ दैट थिंग एज वेल, राइट. इट डिपेंड्स सुरन शेखर, जो रिटर्न्स है ना, दैट डिपेंड्स, दैट वी आर गोइंग टू टच इन कमिंग स्लाइड्स. नाउ डिविडेंड यील्ड, let's equity में contra हो गया. contra they invest in risky companies, right? They invest in growing companies. Equity means equity dividend yield means they are investing in mutual funds for dividend yields. But again I would say you should not invest for dividends. Dividends में इतना return नहीं आता है. To earn 1 lakh rupee dividend, generally if I tell you, you need to have at least 50 lakh, 25 lakh or 30 lakh rupee invested somewhere in a company. तो डिविडेंड कभी भी माइंड में रख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. द होल एंड सोल पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी कैपिटल गेन. डिविडेंड तो इट जस्ट अ सेकेंडरी थिंग विच यू आर गेटिंग. ELSS आर दोज फंड्स हु कैन सेव योर टैक्सेस. लेट्स सी. So there would be lock-in period over here. So again, you are getting 20, 18%, 10%, 17%. So on an average, guys, 18% is a good number where you can expect good returns from any mutual fund, right? So these funds, ELSS funds, are the tax saver funds, guys, right? तो इतना आपको मिल जाता है इसमें, and इससे you will be getting some tax redemptions as well, right? Now flexi cap means they will be investing in all the types of market caps, like large cap, mid cap. Large cap are big companies, mid caps are medium sized companies, small caps are small growing companies. Large cap में return कम होते हैं but stable होते हैं. Large cap में you will be getting lesser return, around 13-14%. Small caps are growing companies, you can make more returns in that, but risk is also very high. हाँ, वहाँ पे क्रैश होने के चांस ज़्यादा है. कितने तो स्टार्टअप्स ख़त्म हो जाते हैं. सो दैट इज़ वाई लार्ज कैप, इफ़ यू आर स्टार्टिंग, स्टार्ट फ्रॉम लार्ज कैप. एंड इफ़ यू आर प्रो तो स्टार्ट फ्रॉम मल्टी कैप. डायरेक्टली स्मॉल कैप में लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू आर सच अ रिस्क टेकर तो आप लगा सकते हैं.
Now, I hope this the up, up till here it is clear to everybody. Now, coming to asset allocator for funds. अच्छा, asset allocator तो Soran Security is done by the fund manager. He is the whole and sole decider who decides. Large cap affects. Okay, so please have an example of your own experience in mutual fund. Definitely, I'll do that, Tanishka. The class is still going on. Maybe this class or maybe by next class we will be discussing that thing as well. It's not done yet. We are just into the mutual funds. Now coming to the sectoral funds, guys. अब होता क्या है म्यूचुअल फंड में दे आर नाउ दीज आर द म्यूचुअल फंड्स हु आर इन्वेस्टिंग इन स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे बैंकिंग है एफएमसीजी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सो दीज आर द म्यूचुअल फंड्स हु आर इन्वेस्टिंग इन दीज सेक्टर्स ओनली नाउ यहाँ पे आई विल डिफर अ बिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट थिंग सी अगर आपने एक सेक्टर में ही पैसा लगाया सारा if you invested your money in just one single sector that is against diversification first of all अगर उस सेक्टर में कुछ गड़बड़ हुआ if something wrong happen in that sector your mutual fund will hit in a bad way so हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही इसलिए करते हैं वाई वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड टू टेक लेस रिस्क राइट टू हैव बेटर डाइवर्सिफिकेशन ताकि ज़्यादा जगह पैसा लगाएं म्यूचुअल फंड राइट सो अगेन यू कैन इन्वेस्ट इन दी सेक्टोरल फंड्स एज वेल इफ़ यू थिंक दैट कल को जैसे फॉर एग्जांपल कोविड क्राइसिस से पहले इफ़ समवन हैड इन्वेस्टेड इन फार्मा सेक्टर ही हिज मनी वुड हैव ग्रोन इन अ बिग वे बट अगर वो सेक्टर ऑटोमोबाइल में लगाया होता तो हिज एंटायर म्यूचुअल फंड वॉज कुड हैव बीन इन नेगेटिव बिकॉज कोविड में तो गाड़ियाँ द सेल्स एंड रेवेन्यूज ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर वॉज वेरी लो सो वी हैव टू कीप इन आर माइंड कि हम किसी सेक्टर में पैसे लगाएं और सेक्टर फ्यूचर में कैसा करेगा सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन सेक्टोरल फंड्स यू शुड अवॉइड but if any fund which you expect any sector which you expect will grow in future then absolutely you can invest in that. I hope this is also clear to everybody. So these are technology funds, they are consumption fund, energy funds, environment funds, in manufacturing funds, MNC funds. So these are the funds who are investing in specific sector basically. तो मेरा तो ऐसा मानना है ट्राई टू अवॉइड स्पेसिफिक सेक्टर इफ अ सेक्टर में grow in future which you think then it could be yes sectoral fund diversified. Now coming to this one is interesting guys. There is one more fund, quantitative funds. These are the funds where the decisions are not taken emotionally, the decisions are taken on the basis of financial models, mathematics, probability. So that's why quantitative number is given. So all these funds as such, all the equity funds, कोई भी equity fund हो, सारे के सारे equity fund will give you around 12% to 18% returns. And if everything goes fine, it can exceed 20%, 23%, 22, sometimes rarely you may get 25% as well, but बहुत कम होगा. But on an average 18% return you can expect. It's a good return guys. और म्यूचुअल फंड में बेनिफिट यही है, यू आर स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव ह्यूज मनी बट एटलीस्ट 400-500 रुपये तो निकाल सकते हैं, 1000 रुपये तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स. 10 साल में वी विल बी सीइंग कितना पैसा बन सकता हूँ, मैं बताऊँगा आपको कैलकुलेटर्स में राइट. बट you should start investing. I hope this is clear to everybody. All right. Okay. Now coming to ETFs I will be coming in a moment. Now funds of funds, this is also very interesting guys. अगर हमें फॉरेन में पैसा लगाना हो तो क्या कर सकते हैं, या हमें ऐसा करना हो कि सर आपकी बात तो ठीक है आई थिंक बट मुझे इन सारी चीज़ों में पैसा लगाना है. आई वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, आई वांट टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, मिड कैप, इन सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना हो तो यू डोंट हैव द मनी. और सर मेरी जेब में है ही 100 रुपया, इफ़ आई जस्ट हैव 100 रुपी एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन ऑल दीज फंड्स देन व्हाट कैन आई डू. देन यू कैन इन्वेस्ट इन फंड्स ऑफ फंड्स गाइज. मतलब ये वो फंड्स हैं जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, ये स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाते. डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. दैट्स व्हाई द नेम इज़ गिवन फंड ऑफ फंड्स, कि ये आपसे पैसा लेके खुद भी म्यूचुअल फंड नहीं है वैसे, लेकिन दूसरे सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड एज फंड्स ऑफ फंड्स. डोमेस्टिक मीन्स इंडिया के ही फंड्स हैं. इंटरनेशनल मीन्स दे आर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड्स ऑफ अमेरिका और यूरोप. आई होप यू गॉट द पॉइंट. बट यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान ये रहता है, एक तो पहले ही म्यूचुअल फंड आपसे कमीशन लेगा,
फिर वो आगे किसी और म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएगा, वो अलग कमीशन लेगा, सो यू हैव टू पे डबल कमीशन समटाइम्स। बट अगेन इट्स अ टूल, इफ़ यू हैव एक्सेसिव मनी तो इसमें भी डाल दो। अब यहाँ पे आते हैं फंड्स ऑफ फंड डेट। डेट मीन्स ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, ये उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे हु इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स लाइक दीज डेट फंड्स। Guys, I hope everyone is with me. If you have any doubts, feel free to ask. No worries. Take me, don't take me just as a teacher, just take me as a mentor. Apart from class, even if you have any doubts, you feel free to ask, right? Domestic equity funds. I hope this is clear to everyone. Domestic gold fund could be important for you. See, funds of funds may, these are the mutual funds who take money from you and invests in ETFs, companies who buy gold और म्यूचुअल फंड्स who इन्वेस्ट इन गोल्ड। ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है गोल्ड में एंड सिल्वर में, इट कैन बी डन। बट बेटर, मैंने आपको गोल्ड वाली क्लास में बताया था, देयर अदर अल्टरनेटिव एज वेल, बट दिस कैन बी डन। If you want to invest in overseas mutual funds like in the mutual funds of America or Europe, absolutely you can invest in funds and funds of overseas. I hope this is clear. Then come the hybrid fund. Name itself suggests you. Hybrid मतलब सबका होच पोच मिक्सचर। हाइब्रिड फंड वुड बी इन्वेस्टिंग योर मनी। हाइब्रिड फंड का रिटर्न मैं बता देता हूँ आपको, इट विल गिव यू रिटर्न अराउंड 8 to 10 to 12%। 12% से कम कम ही होगा। लेट्स ओपन हाइब्रिड फंड फर्स्ट। ये एग्रेसिव है, एग्रेसिव मीन्स दे विल बी इन्वेस्टिंग इन एग्रेसिव फंड्स। तो देख लो 8 से 10% से 12% टच होगा। सम फंड्स टच 15, बट गाइज वेरी रेयर फंड्स। बट जनरली आप ये सोच के चलो 12, 13, 14, 10 to 8 से 12% मीन्स हायर देन डेट फंड, लेसर देन इक्विटी फंड। हाइब्रिड बीच का होगा, सबके बीच का फंड। हाँ, Shreya, we are discussing for the beginners. I will be discussing that thing as well. We are not done yet. I'm just giving you an overview of types of funds, right? So hybrid fund is the middle ground between equity and between debt. Debt से ज़्यादा equity से कम, मतलब 12% के आसपास, near to 12% you will be getting. So hybrid fund could be a good fund, but again it's a no from my side. Should be avoided. इसको avoid करो, because अभी तक हमने अवॉइड किसको किया है? डेट फंड्स को अवॉइड किया। वी हैड अवॉइडेड डेट फंड्स बिकॉज डेट फंड्स में देखो बैंकिंग फंड्स थे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्रेडिट रिस्क फंड, डायनामिक बॉन्ड्स। डायनामिक बॉन्ड मतलब these debt funds would be investing your money in the bonds who have floating interest rates. Again, floater भी आ गया, फिर गिल्ट फंड्स आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सो दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर 10 year लॉक इन पीरियड, मतलब बॉन्ड्स की बात हो रही है ये, नॉट योर मनी। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, so these are investing your money. Money market means repos and all that. So these funds should be avoided. बॉन्ड्स मैक्स टू मैक्स 7%, बॉन्ड्स डायरेक्ट रिटर्न देते हैं। अगर आप डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, इवन टी विल्स और मे बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यू विल गेट 5 to 7%। तो यहाँ पे तो पाँच, इससे अच्छा आप डायरेक्टली बॉन्ड ही खरीद लो, है ना। वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे 1%, 1.5% तो दे विल बी चार्जिंग एक्सपेंस रेशियो एंड दे वुड बी मे बी लॉक इन पीरियड एज वेल। सो अवॉइड डेट फंड्स, अवॉइड हाइब्रिड फंड्स। If you are just starting, start from large cap equity, large cap और mid cap। ये टर्म आपने देखना ही है इन्वेस्ट करने से पहले। स्टार्ट फ्रॉम लार्ज कैप और मिड कैप, राइट। डोंट गो फॉर स्मॉल कैप इन स्टार्टिंग, राइट। with some with age and with time you will become more mature, then you can think of these things. These funds should also be avoided. Thematic means sectoral funds थोड़ा avoid करो। हाँ, कोई सेक्टर आपको लगता है हाँ आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, देन यू कैन इन्वेस्ट, बट ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज कोई एक बैड न्यूज़ आ गई या इफ सम बैड थिंग हैपन्स इन दैट सेक्टर, योर म्यूचुअल फंड विल गो ऑन। म्यूचुअल फंड डाउट, बैंकिंग सेक्टर, दो हम ये रिसर्च कर, इक्विटी रिसर्च में पढ़ाऊँगा आपको, बट अवॉइड बैंकिंग सेक्टर गाइज। यू हैव सीन मैनी बैंक्स कोलैप्सिंग। येस बैंक एग्जाम्पल देखो रिसेंटली मैंने, बिकॉज दोज थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड। अगर गलत लोन उन्होंने दे दिया, पैसे आपके फंसेंगे, राइट। वाइड क्वालिटी, हाँ आरुषि 2008 क्राइसिस वॉज कैस्केडिंग इफेक्ट, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई थी, सी डी ओज एंड सी डी एस, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। So 2008 crisis was very interesting and it's a wide topic. We will be discussing that. Hybrid avoid, right? अब ये fund important है guys. I want you to focus over here. Index fund. Now those who are starting,
एंड मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स वुड बी कमिंग टू यू कि सर मुझे बताओ कहाँ पैसा लगाऊं एंड ज़्यादा लॉस भी ना हो। इंडेक्स फंड में अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। मीन्स ओवर हेयर यू विल बी मेकिंग अराउंड 12%, 12% के आसपास आपको मिलेगा। देख लो 18%, 10%, 16, मतलब 12 का आप एस्टिमेट लेके चलो। जो मैं एस्टिमेट दे रहा हूँ, द एस्टिमेट विच आई एम गिविंग यू, दैट एस्टिमेट इज़ फॉर द बैड टाइम्स एज वेल। गुड टाइम्स में तो इट कैन टेस्ट 20% एज वेल। तो बैड टाइम्स के हिसाब से डेट फंड विल गिव यू अराउंड 5 to 7%, इक्विटी विल टच 18%, राइट? फंड्स ऑफ फंड्स विल अगेन टच 16%, हाइब्रिड फंड गाइज बीच का तो 10 से 12%। इंडेक्स फंड इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ना risk is less. What is index fund basically, guys? They invest your money in top 50 companies like Nifty 50, could be Sensex companies, could be top next 50 companies और top 100 companies। वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से वाले इंडेक्स में इन्वेस्ट कर, विच इंडेक्स दे आर इन्वेस्टिंग इन। बट जनरली लेट्स गिव यू एग्जांपल, अ निफ्टी 50 कंपनी जैसे ये है, यहाँ पे लिखा होगा। सो दे इन्वेस्ट इन NASDAQ कंपनी, सो दे आर इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल बिकॉज दिस इज इंटरनेशनल फंड, राइट? लेट्स सी इंडियन फंड, निफ्टी, हाँ, निफ्टी फार्मा, they are investing in nifty only in pharma sector. So the thing is that over here guys, financial, हाँ, टाटा निफ्टी फाइनेंशियल, ये लोग। So over here what is happening, they will be investing your money in the nifty financial companies. Similarly यहाँ पे ना निफ्टी 50 नहीं है क्या? This will be a homework as such. हाँ, मिड कैप वुड बी फाइन। द थिंग इज दैट ओवर हेयर इंडेक्स फंड में पैसा लगा के बेनिफिट क्या रहता है, दे विल गिव यू एटलीस्ट 12% रिटर्न। दे आर इन्वेस्टिंग इन टॉप निफ्टी 50 कंपनीज, सो दीज आर स्टेबल कंपनीज, बेटर कंपनीज, एंड योर मनी विल ग्रो ओवर हेयर। लॉसेस के चांसेस कम है। सो इफ़ आई टेल यू कि सर हमें कहाँ पैसा ज़्यादा रिटर्न्स के लिए कहाँ लगाना चाहिए फॉर द बिगनर्स, so the beginner number one should be investing in equity large cap or mid cap or index funds. These two are good advice to start with, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉसेस कम है। हाँ, यहाँ पे इन इक्विटी लार्ज कैप एंड मिड कैप यू विल टच 18%, यहाँ पे यू विल टच 12% इन बैड टाइम्स। इन वेरी गुड टाइम्स you can end up having 20% or maybe more than that as well, but this is the expectation that you can touch. अब यहाँ पे जो आपको देखना है, व्हाट यू हैव टू सी इन इंडेक्स फंड, कि कौन से इंडेक्स को बेंचमार्क रख रहे हैं, वेयर दे आर कीपिंग दिस, व्हाट इज़ अ बेंचमार्क, इज इट निफ्टी 50 और इज इट मिड कैप 50 इंडेक्स? तो यहाँ पे मिड कैप है गाइज, यहाँ पे ना एक, हाँ, लार्ज कैप यहाँ पे आएगा। ये देखो यहाँ पे आया, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, ICICI BSE सेंसेक्स। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इन्वेस्टिंग इन टॉप सेंसेक्स कंपनीज। यहाँ पे निफ्टी भी होगा, ये निफ्टी 50 इंडेक्स, ये वाला आई वॉज ट्राइंग टू से। सो व्हाट दे विल बी इन्वेस्ट, दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द टॉप निफ्टी 50 कंपनीज। तो आपको यहाँ पे ना वही देखना है विच इंडेक्स दे आर यूजिंग। तो दे आर यूजिंग निफ्टी 50 इंडेक्स, so they will be investing in the nifty 50 companies. I hope guys this is clear to everybody. So see, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। नथिंग इज दैट, अब टॉप 50 कंपनीज तो इंडिया की नहीं खराब होंगी ना, मीन्स अगर वहाँ तो इंडिया का GDP हिल जाएगा। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन म्यूचुअल फंड, सो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स फंड। इंडेक्स में भी आई वुड सजेस्ट निफ्टी 50 और सेंसेक्स। हाँ, इफ़ यू आर बिट कैलकुलेटिव तो यू कैन गो निफ्टी 100 एज वेल, दैट्स ऑल्सो फाइन, और निफ्टी 200 एज वेल, दैट्स ऑल्सो फाइन। बट निफ्टी 50 will give you around 13%, 12-13%. Equity will give you 18%. Equity, mid cap and large cap. Guys, I hope this is clear to everybody. So see, just imagine so many types of mutual fund यार, इतने तो mutual, अभी भी there are so many mutual fund which are getting launched. Any doubts till now, guys? ETF I have not touched. I will be just coming to that. Yes, large cap are see, Ritam Roy, there are two types of funds. One, when the dividends are reinvested, that is one type. One is called as income distribution plans. उसमें क्या रहता है, whenever a mutual fund receives dividend, they distribute the dividends to the investors. So there are two types. Generally mutual funds are reinvestment types only.
ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं दे री इन्वेस्ट योर डिविडेंड्स. बट इफ वेन एवर यू सी some term over there, IW something, or in income reinvestment, income distribution plan, I IDW समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई टर्म कहीं दिखे आपको, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, इट मीन्स दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द, हाँ, ICW, यस 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 अर्जुन, अगर आपको ऐसा टर्म कहीं दिखे तो इट मीन्स दे आर गोइंग टू गिव द डिविडेंड्स टू यू. बट अगेन एज आई टोल्ड यू, डिविडेंड शुड नेवर बी द मोटिवेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, नेवर एवर. क्योंकि इफ़ यू वांट टू अर्न 1 लाख रुपये डिविडेंड, इस क्राइटेरिया को माइंड में रख लो, जस्ट रिमेंबर दिस क्राइटेरिया ऑलवेज. To earn 1 lakh rupee in dividends from direct stocks, you need to and you must invest 30 lakh rupee in just one company. एक कंपनी जैसे मान लो कोल इंडिया लिमिटेड. सो टू अर्न डिविडेंड्स फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड यू नीड टू इन्वेस्ट 30 लाख रुपी इन दैट. अरे 30 लाख में तो यू कैन इन्वेस्ट योर पोर्टफोलियो, यू कैन मेक अ बेटर पोर्टफोलियो. सो डिविडेंड इज नॉट एडवाइजेबल फ्रॉम माई साइड, जस्ट एड ऑन, अगर मिल रहा है तो इट्स फाइन. कैन वी स्टार्ट? साक्षी, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, अभी इस कोर्स को कंप्लीट होने दो, इस क्लास को कंप्लीट होने दो. इफ़ नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस थिंग. यहाँ पे रहता क्या है, हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट. ट्राई टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान्स, नॉट द रेगुलर वंस. If someone is trying to sell you a plan, please avoid that, right? Try to invest from directly Zerodha coin or Grow. And nowadays phone pay and Google Pay, they have this option of mutual funds as well. Try to explore that. Those are direct plans, you can directly start your SIP from there. So the class is not yet complete, guys. We are still on the way. We have to discuss a lot of things now. अभी इस सारे पेज को, I have to teach you this entire page, what exactly it means. अभी तो we had just discussed one thing, that is these are the types of mutual fund. I hope this concept and this concept is clear till now, right? All right, any doubts? Yes, yes, ETF I will be coming, Raj. Now coming to passive fund and active fund. पैसिव फंड्स आर दोज फंड्स जहाँ पैसा लगाया म्यूचुअल फंड ने और भूल गए, लाइक इंडेक्स फंड्स. इंडेक्स फंड्स में यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ना. मीन्स इंडेक्स फंड में व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स मीन्स निफ्टी 50 कंपनीज आर द वंस वेयर म्यूचुअल फंड वुड बी इन्वेस्टिंग. तो निफ्टी 50 कंपनीज दे डोंट चेंज दैट फ्रीक्वेंटली, राइट? तो उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाना है, 50 कंपनीज में, दैट्स इट. सो द थिंग इज दैट ओवर हियर, दैट इन निफ्टी 50 दीज आर कॉल्ड एज पैसिव फंड्स. यहाँ पे चर्निंग रेट इज़ वेरी वेरी लेस, राइट? वेयर एज गाइज यहाँ पे देखा ना, टर्न ओवर ये लिखा हुआ है, आई होप यू कैन सी गाइज, लेट मी टर्न ओवर इज़ द चर्निंग रेट. चर्निंग रेट होता है एक साल में कितने परसेंट शेयर्स को खरीद के फिर से बेच दिया जाता है. मीन्स हाउ मैनी टाइम्स द एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ द म्यूचुअल फंड इज चर्नड, घुमा दिया जाता है. So if it is 20% fine, less than 50% means it's fine. But if it is 100%, guys, that is very risky mutual fund. उसमें तो मत जाओ. If it is less than 50%, it's fine. 20-30% तो कम है, बट ये बहुत ज़्यादा है. इट मीन्स एक साल में पूरे के पूरे शेयर्स को बेच के फिर खरीद के फिर बेच दिया जाता है. मीन्स यू हैव परचेज समथिंग, यू हैड इन्वेस्टेड योर मनी, यू रिडीम्ड इट एंड अगेन परचेज समथिंग. तो उसमें तो रिटर्न नहीं बनेगा ना ज़्यादा. मीन्स फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग इज़ नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज उसमें ब्रोकरेज जाएगी, टैक्सेशन जाएगा गवर्नमेंट के, मनी विल बी वेस्टेड. तो दिस टर्न ओवर रेशो शुड बी लेस. दिस इज समथिंग वी विल बी डिस्कसिंग. ये पूरा पेज मैं आपको पढ़ाऊँगा, मीन्स हाउ what are different things. So research part is still pending. I'm just relating the theoretical with the research. I hope passive and active fund is clear. These all things are clear. Any doubts till now, guys? Open fund, closed fund, interval fund already discussed, right? If there is no maturity date, you can invest and withdraw any point of time. And the unit capital is also not fixed, means NAV keeps changing as per transaction. आज बहुत सारा पैसा बन गया, NAV हाई, पैसा विड्रॉ कर लिया, या पैसा इफ़ द मार्केट्स आर नॉट डूइंग गुड, NAV वुड बी लो, राइट? क्लोज्ड फंड्स आर दोज फंड्स, these फंड्स विल ओपन जस्ट वंस. जैसे IPO होता है वैसे खुलेंगे ये. NF होता है न्यू फंड ओपनिंग के टाइम में. यू इन्वेस्ट योर मनी एंड योर मनी विल बी लॉक्ड फॉर 5 years 10 years, एंड यू विल बी गेटिंग द रिडेम्पशन ओनली आफ्टर दैट, राइट? उसमें भी आप रिन्यू कर लेते हैं कई बार, देयर इज़ सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, यू इन्वेस्ट योर मनी समवेयर एल्स. बट अगर रिटर्न ज़्यादा चाहिए देन क्लोज फंड्स आर गुड.
अगर रिटर्न ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मीन्स मोर देन 20%, देन क्लोज फंड्स आर गुड। ओपन फंड्स में बेनिफिट ये रहता है यू कैन रिडीम एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ये भी T+1 डे में हो जाता है। मीन्स अगर आज आपने म्यूचुअल फंड को रिडीम किया, बाय टुमारो यू विल बी गेटिंग योर मनी एज सच। आपका पैसा रिडीम रिडूम होके वापस आ जाएगा। समटाइम्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट द रिडेम्पशन इज गुड, लिक्विडिटी इज गुड। इंटरवल फंड्स, again they open and close at specific intervals. I hope this is also clear. Active funds and passive funds guys, they replicate index. यहाँ पे ज़्यादा churning rate नहीं होता है, and expense ratios would also be low because mutual fund का ज़्यादा काम नहीं है ना इसमें। म्यूचुअल फंड इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट टेकिंग योर मनी एंड इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 कंपनीज। वो तो आप भी पैसा लगा सकते हो निफ्टी 50 में तो, बट फॉर डैट यू नीड हायर अमाउंट ऑफ कैश कैपिटल विद योर सेल्फ। 100 रुपये से तो निफ्टी 50 में नहीं लग सकता, पर 100 रुपये से पैसिव फंड में पैसा लगाया जा सकता है। सो डैट यू कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 100-500 रुपी गाइज। ये बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का, दिस इज द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड राइट। और अभी से शुरू करोगे तो मैं आपको कैलकुलेटर में बताऊंगा, यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, ट्रस्ट मी, गुड अमाउंट ऑफ मनी। एक क्लास और रुक जाना, देन यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। So active funds where churning rate is very high, right? They invest in various companies, they invest in various sectors, they invest in multiple, I would say, financial instruments. So this is active fund. Already discussed equity fund hota hai, they invest in equity, but equity is more risky. पर ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा रिटर्न। तो इक्विटी में यू अर्न 18%, अप टू 18% यू विल मेक राइट। डेट फंड में इट इज़ लेस रिस्की, दे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, तो यू विल बी मेकिंग 5 to 7%। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, इससे अच्छा PPF में लगाओ। हाइब्रिड फंड इज़ मिडल ऑफ बोथ। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पैसा लगाएंगे ये लोग, थोड़ा डेट में लगाएंगे। मॉडरेट रिटर्न्स मॉडरेट रिस्क, तो यहाँ पे यू कैन ईजिली मेक 10 to 12%। बट अगेन गाइज हाइब्रिड फंड से अच्छा फिर इक्विटी में ही लगाना बेटर है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग, स्टार्ट फ्रॉम लार्ज कैप एंड मिड कैप राइट, और ब्लू चिप और ETF और यू आई वुड से दैट इंडेक्स फंड्स। अभी तक आपको जो एडवाइजेबल है दैट इज़ लार्ज कैप, मिड कैप, ब्लू चिप वुड बी द वर्ड, और द इंडेक्स फंड। इंडेक्स में भी निफ्टी 50 इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। अब आता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट और सिप, लमसम। यहाँ पे एक और चीज़ होगी SWP और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक गाइज, चर्निंग रेट लो मीन्स इट्स गुड, मतलब आपके पैसे को इतना ज़्यादा नहीं घुमाया जाएगा, अच्छे से इन्वेस्टमेंट में काफ़ी दिन रहेगा। सो इफ द चर्निंग रेट इज़ लो तो इट्स नॉट फ्रीक्वेंट, बाइंग एंड सेलिंग इज़ नॉट फ्रीक्वेंट इन म्यूचुअल फंड्स। ऑलराइट भुवन, इफ़ इट इज़ वेरी हाई तब तो थोड़ा रिस्क है। मीन्स आपका, जस्ट इमेजिन गाइज, इफ़ यू स्टे इन इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग रन तो ज़्यादा रिटर्न आते हैं। आप बाइंग सेलिंग ही करोगे ना तो आपके रिटर्न कम हो जाएंगे। वाई? बिकॉज एक तो आप ब्रोकरेज दोगे, सेकंड आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, बाइंग का भी सेलिंग का भी, तो वाई टू वेस्ट मनी राइट। सो दैट्स वाई हाई चर्निंग रेट इज़ नॉट गुड। ओके ओके, ऑलराइट, लेट्स थिंक सिचुएशन नाउ। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू जस्ट इमेजिन, आपने कितने का लोन ले सकते हैं, आपने 1 करोड़ का लोन लिया घर के लिए। यू टुक लोन ऑफ 1 करोड़ रुपी फ्रॉम योर फॉर योर हाउस। आपने 1 करोड़ का घर नहीं खरीदा, आपने घर खरीदा 60 लाख का। यू परचेज योर हाउस फॉर 60 लाख, और जो 40 लाख बचे वो डाल दिए म्यूचुअल फंड में लाइक लमसम। अब म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे लगाए जाते हैं? एक होता है सिप, सिप होता है एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल करके हर महीने थोड़ा थोड़ा, जैसे RDs में लगाते थे रेकरेंट डिपॉजिट, सो दिस इज सिप राइट। तो एवरी मंथ यू योर मनी विल ऑटोमेटिकली गेट डिडक्टेड अगर आपने सिप करवाया। जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो ना, यू चूज दिस ऑप्शन एक्चुअली। तो यू इफ़ यू चूज सिप वाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट, तो मैं ज़रूर तक आपको खोल के बता दूंगा नेक्स्ट वीक, तो उसमें आपके पैसे खुद डिडक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज सिप एवरी मंथ। ये भी अच्छा होता है, जब पैसे कम है तो ये ज़्यादा बेटर है। 500-600 रुपया पॉकेट मनी से देना है तो इट्स फाइन। एक होता है लमसम। लमसम होता है व्हेन यू वेट फॉर द राइट टाइम। मैंने जैसे जैसे आई टोल्ड यू डैट यू शुड वेट कि NAV जितना कम हो उतना बेटर, आई टोल्ड यू। सो you will wait for the right times, you will collect the money, you can accumulate the money. Once the markets are low, NAVs are low, आप इकट्ठा पैसा डालोगे। This is called as lump sum, right? This is step number 2.
नाउ देयर इज नंबर 3 ऑप्शन, इट इज़ कॉल्ड ए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब आपने लेनी है गाड़ी। एक और एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी कितने की आती है? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ अ कार? इट कुड बी 15 lakhs। 15 लाख की गाड़ी मत खरीदो, 15 लाख डाल दो SWP में, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में। इसका मतलब होगा वो 15 लाख तो आपका वहीं रहेगा, लेकिन इस 15 लाख में आपको पर मंथ फिक्स्ड इनकम आना शुरू हो जाती है। सो यू विल स्टार्ट गेटिंग इनकम, मंथली इनकम। यू कैन फिक्स दैट इनकम एज वेल कि मुझे 15,000 इनकम चाहिए, मुझे 10,000 इनकम चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन फिक्स दैट।